नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ब्रोकर की पाठशाला में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं हूं विनोद ठक्कर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्क्वायर फिट इंडिया। आज हम सीजन 5 में, जो कि सिटीस्केप के ऊपर है, हम हिंदुस्तान के अलग अलग सिटी में जाके वहां के जो डेवलपर्स है, ब्रोकर्स है, उनके साथ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में वहां पे क्या हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और चर्चा करते हैं। आज हमारा सेशन है 47 और आज हम पहुंचे हैं कोल्हापुर। आज कोल्हापुर की नगरी में हमारे साथ तीन दिग्गज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गिरीश रायबगे है, जो कि रेसेंस कंस्ट्रक्शन से है। गिरीश भाई नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। नमस्ते। हमारे साथ रत्नेश सिरोडकर है, जो कि आदित्य प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से है। नमस्कार रत्नेश भाई, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। और नितिन केसरकर, जो कि एमकॉन रियल्टर से है। नमस्कार नितिन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। दोस्तों, हर वक्त जैसे हम करते हैं, हमारा हर सेशन प्रेयर से शुरू होता है, क्योंकि ये ब्रोकर की पाठशाला है और हम जब भी पाठशाला में जाते हैं तो हमारे गुरु के लिए प्रेयर करते हैं, भगवान से याद करके उसके बाद में हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सबसे गुजारिश है, मेरे साथ 1 मिनट के लिए प्रेयर के लिए जुड़ जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्युमा। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Thank you friends, and welcome back to Broker Ki Pathshala season 5. We are in session 47, and today I am indeed very happy to welcome 3 leaders from real estate industry from Kolhapur, who are going to discuss about not only about real estate, but we are going to get to know more about what is Kolhapur, except Kolhapuri Chappal from Amitabh Bachchan's film. So there are a lot of things which as an Indian we get to know about different city of India through this program. So once again welcome to our speakers today. सबसे पहले गिरीश भाई, आप कुछ अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से है? कभी कभी मैंने देखा ऐसे सेंटर में बंदा आजू बाजू के गांव से आता है कुछ साल पहले, और कुछ सपने लेके। तो आपके बारे में बताइए, आपकी फैमिली, आपका एजुकेशन, और आप रियल एस्टेट में कैसे आए? सर, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोल्हापुर का ही हूँ। एक्चुअली आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली. My father, my elder brother, my younger brother, we all are in different segments of business. We call ourselves in a diversified business portfolio. Like my father and my elder brother is into manufacturing. We are manufacturing some foundry chemicals. Besides, we have foundry manufacturing some automobile castings. I am executive director and I'm looking after construction, power generation, power trading, and some retail activities. My younger brother is looking after hospitality, and I came into construction, I'll say accidentally. I was not actually meant to come in construction. I did my graduation in chemistry, and I joined my father's business since it was related to foundry chemicals. I was looking after marketing and finance then, but I don't know for what reason, so something happened and I landed up in construction. Till date, we have done almost 27, 28 projects. Most of the projects are here in town. We are in almost all the verticals of construction, like residential, commercial. I have done some industrial projects. Hospitality, I constructed our own hotel. Then a retail building recently I have done. And mostly we are into real residential construction only. Till date, I think I have done around 10 lakh square feet of construction. Oh, fantastic. And delivered more than 600, 700 homes. Oh, excellent, excellent. I think I'm very happy to know that you are also BSc chemistry. I'm also BSc chemistry, and I came into real estate by accident, not by choice. आपने क्रेडाई में भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। Yes sir, I was the president of city chapter Kredai Kolhapur over here.
2 साल मेरा टेन्योर था. उसके बाद आई वाज प्रमोटेड टू क्रीडाई महाराष्ट्र, व्हिच इज अ स्टेट लेवल फेडरेशन ऑफ ऑल द क्रीडाई सिटी चैप्टर्स. I was convener for our conventions and study tour. We did almost 4 or 5 conventions, which state conventions, which are named as Mahakon. I was also part of a national convention of Kridai National, which was hosted in Istanbul, Turkey. Okay. Then I was promoted as a joint secretary of Kridai Maharashtra, where I worked for 2 years under leadership of Shantilalji Kataria, who was president there of state chapter. Then I was assigned responsibility of state treasurer when our friend Rajubhai Parikh was president from here. Now I'm again looking after urban development towards Kridai Maharashtra. I am convener for UD there. वाह, क्या बात है. हमारे अंदर बहुत सारे I was instrument in getting the new unified bylaws. I was part of the committee then. Excellent, excellent. बहुत सारी सिमिलरिटी है सर बीएससी केमिस्ट्री वालों में. मैंने भी हमारा रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन है दोस्तों. जैसे ब्रोकर्स के लिए जो एनआर इंडिया है, रियल्टर बॉडी है, नेशनल बॉडी, ऐसी ही डेवलपर के लिए क्रेडाई है, जो क्रेडाई इंडिया है, और हर एक सिटी पे क्रेडाई के चैप्टर है. जैसे हमारे एनआर इंडिया के चैप्टर है, कोल्हापुर में चैप्टर है, वैसा क्रेडाई का सिटी चैप्टर है, जिसमें गिरीश भाई प्रेसिडेंट रह चुके हैं. और फिर महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र का जो क्रेडाई है उसमें उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया. बहुत सारे कन्वेंशन को लीड किया उन्होंने. मैंने भी हमारे रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया था सर, बहुत पहले 2005 में. एंड देन आई डिड टू नेशनल कन्वेंशन ऑल्सो. सो आई थिंक बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है हम दोनों में. थैंक यू फॉर बीइंग देयर गिरीश भाई. बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और आई एम श्योर हमारा इंटरेक्शन में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बिकॉज आप जहाँ से है और आपने जो काम किया है वो रियल एस्टेट के जो हमारा जो ऑडियंस रहेगा उनको बहुत सारी बातें कोल्हापुर के बारे में जानने को मिलेगी. रत्नेश जी, आप बताइए अपने बारे में. आप कहाँ से है, कैसे यहाँ तक पहुंचे, आपकी फैमिली, स्कूलिंग, कॉलेज? मैं आदित्य प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के नाम से कोल्हापुर में फर्म चला रहा हूँ. लास्ट 23 ईयर्स से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ. मेरे ऑफिस में 12 लोगों की टीम, पिलर्स बोलते हैं, मैं पिलर्स बोलता हूँ. रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, अपनी टीम ही अपने पिलर्स है, जिसके ऊपर, जिसकी बुनियाद पे हम लोग भी एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे. ये 12 लोगों के साथ में काम करते हुए कोल्हापुर की रियल एस्टेट में बहुत सी सेवा करने की लोगों की संधि मिली है मुझे. इसमें मैं रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ओपन प्लॉट, ये सब चीज़ों में मेरे ऑफिस से वर्किंग होता है. बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें स्पेशली हमने काम किया है कमर्शियल में. कमर्शियल में कोल्हापुर के बहुत अच्छे ब्रांड्स लाने में हम काम कर चुके हैं, और उसमें हमें सफलता भी मिली हुई है. इसके साथ में एनआर इंडिया के साथ जब से ज्वाइन हुए हैं, तब से हमारे में काम करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स जितने हैं, प्रोफेशनलिज्म है, सब बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला, समझने को मिला, उसकी ट्रेनिंग मिली. उसके वजह से हमने कोल्हापुर में एनआर इंडिया के अंडर कारवा, कोल्हापुर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमने चालू कर दी. उसका मैं फाउंडर चेयरमैन रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है. नितिन जी और हमारे साथ में 29 लोग जुड़े हुए हैं. टोटल 30 जनों की कोल्हापुर की टीम है, जो लगातार 5 साल से बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ में ही सोशल वर्क करते करते मैं कोल्हापुर ताराई पार्क एरिया है हमारा, वहाँ का मैं एक्स कारपोरेटर हूँ. अरे वाह, क्या बात. और कोल्हापुर के लिए जितना रियल एस्टेट सेगमेंट में जो कानून, नियम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो काम रहते हैं, उसमें मैं सेवा देते आया हूँ. और उसमें बहुत अच्छे जैसे घर पाला है, और आज जो प्रॉब्लम्स थे कोल्हापुर के, वो सॉल्व करने में हमें सौभाग्य से इसमें सक्सेसफुल हुए हैं. तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? आप कहाँ से, आपका ओरिजिनल? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट ऑफ कोल्हापुर. वेरी गुड. तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, आप वहाँ से ही है, तो एक्सेलेंट. यस, नितिन भाई, अपने बारे में बताइए थोड़ा. जी सर, मैं नितिन केसरकर, एमकॉन रियल्टर्स के नाम से मेरा ये फर्म चला था सिंस लास्ट अराउंड 11 years. I fell from a small town called Gadingas, which is 80 kilometers from here. तो जैसे आपने पूछा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं,
तो वहां से, तो लेकिन पिछले 28 साल से मैं यहीं पे हूँ, कोल्हापुर में ही हूँ। और कमर्शियल रियल एस्टेट सेल्स एंड रेंटल्स और रेसिडेंशियल सेल्स, ये दोनों चीजों में काम करते हैं। जैसे ही एनआर इंडिया के साथ जुड़ गए वाया KRWA, वाया रत्नेश जी, तो आप जैसे ट्रेनर्स के साथ हमेशा, इवन इन लॉकडाउन वी वर गेटिंग सो मच इंफॉर्मेशन, सो मच नॉलेज। उसकी वजह से जो आज ग्रूमिंग हुई है, जो आज प्रोफेशनलिज्म आया है, दैट इज सो हेल्पफुल। और एनआर इंडिया बहुत अच्छे से ये फ्रेटर्निटी को ग्रूम करने में काम कर रहा है। एंड हमारे सबके सब मेंबर्स में वी आर सीइंग, मतलब दिख रहा है वो चेंज, वी आर सीइंग दैट चेंज इन इट, ग्रेट। लाइक दैट। आपके एजुकेशन वगैरह, एकेडमिक बैकग्राउंड और आपके फैमिली में कौन, हाउ डिड यू जॉइन रियल एस्टेट? या एक उसका एक्चुअली छोटा सा स्टोरी है वैसे देखा हाँ जाए तो। हाँ। आई एम एन इंजीनियर बेसिकली, ओह, बट आई वाज प्रीवियसली इन इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग हाँ। into lubricants and sort of things. कौन सी तो लेकिन इंजीनियरिंग की आपने नितिन जी? मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ। आपको किसी ने बोला नहीं अरे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर करके एस्टेट एजेंट बनता है, मतलब? हाँ, बहुत बहुत जनों ने बोला, खुद भी लग रहा था, बट हैपन एंड वी आर हियर नाउ एंड वी आर सक्सेसफुल नाउ। तो कैसे कैसे था वो ट्रेडिंग का टाइम, अराउंड 2007-8-9 के अराउंड थोड़ा सा सेटबैक था। तो काफी क्रेडिट के इश्यूज थे, पैसे के इश्यूज थे, तो ये सब चलता रहता था। आई वाज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग, तो क्या करना है क्या करना है, ये सब चल रहा था। इसी बीच एक कंपनी के काम के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस था उनका, तो उसलिए दिल्ली जा रहा था। हाँ। जब दिल्ली जा रहा था तो राजधानी में एक सरदार जी मिला, एंड ही वाज लाइक अ मैसेंजर फॉर मी। अगर आपने अल्केमिस्ट पढ़ी है तो यू नो अ यस मैसेंजर व्हाट इज। यस। सो उसने बोला कि उसे ही वाज लिसनिंग टू माय कॉल्स एंड ऑल, जब जो भी चल रहा था। तो जैसे उसको टाइम मिला, हम दोनों ने जब बात हुई, तो वो बोला कि ये सब छोड़ दो और कुछ ऐसा करो जो बिग टिकट साइज हो। अभी टिकट साइज जैसा जिसमें ट्रांजैक्शंस बड़ी हो, जिसमें हाँ अमाउंट्स बड़े हो। तो ही गेव अ फनी एग्जांपल टू मी कि अगर तू स्कूटर पे जा रहा है और सामने से कोई स्कूटर पे आ रहा है, दोनों फटे हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा है, तो कुछ नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, चले जाएंगे। क्या बट बात। इंसिडेंटली इफ यू ऐसा ही एक्सीडेंट तेरा अमिताभ बच्चन के साथ हो जाए, वाह। तो तू भी करोड़पति बन जाएगा। तो 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 एक एग्जांपल दिया एंड सडनली थोड़ा सा वो स्पार्क हुआ। जैसे ही वापस आ गया तो दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता था। एक पार्टी के बीच में हमारे एक दोस्त है एडवोकेट, उनसे ऐसे ही बातें कर रहा था, तो वो बोले कि व्हाई डोंट यू कम इन रियल एस्टेट। मैं बोला यार उसका कुछ मालूम नहीं है मुझे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो बोला कल ऑफिस पे आ जा। तो तब से 6-7 महीने में उनके ऑफिस पे जाता रहा, उनकी मीटिंग्स अटेंड करता रहा, उनके साथ एज ए असिस्टेंट बैठ के आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई लर्न टर्मिनोलॉजी एंड इंसिडेंटली आ गए। 2011 में पहला डील हुआ और उसके बाद में ये जर्नी शुरू हो गया। क्या So this is what. excellent. See, this is what is learning for me also. When I interact with Yeah. diversified people, हर एक इंसान के पास एक स्टोरी है, you know, और वो अमेजिंग स्टोरी है, which can inspire many people, you know, और जो भी लोग सुनेंगे, अभी सुनेंगे, बाद में सुनेंगे ये प्रोग्राम। So thank you, Nitin and Ratnesh for sharing about you. गिरीश भाई, हम जब सिटी की बात करते हैं तो हर एक सिटी का, हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट का, हर सिटी का एक अपना स्टाइल है, अपना कल्चर है और अपना मिजाज है। हर शहर का अपना एक मिजाज है। तो आपके मन से, आपके दिल से आप कोल्हापुर को कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी कोल्हापुर में क्या है? हम रियल एस्टेट की तो बाद में बात करेंगे। एज ए सिटी, आप तो बॉर्न एंड बॉटम वहां से है, तो क्या यादें हैं और क्या चीजें जो आपको कोल्हापुर में अभी तक पकड़ के रखी है? अदरवाइज फाइनेंशियली इतना साउंड है, आप पुणे जाके सेटल हो सकते हो। फर्स्ट थिंग इज आई लव कोल्हापुर, और मुझे लगता है कोल्हापुर के हर एक इंसान को वो एक फीलिंग है यस, that व्हाट I इज have दैट? attachment towards the city. एक एक रिच जज्बा है वो। कल्चरल हेरिटेज है कोल्हापुर का। हाँ राजेश्वरी शाहू महाराज का लेगेसी मिला है हमारे सिटी को। महालक्ष्मी विच इज गॉडेस ऑफ वेल्थ जैसे, उसका एक टेम्पल है कोल्हापुर में। कोल्हापुर का इकोनॉमी मुझे लगता है कि काफी सारा हिस्टोरिकल और महालक्ष्मी मंदिर की वजह से रोटेटिंग है। प्लस वी आर रिच शुगर बेल्ट, यहाँ पे काफी सारा शुगर केन का फार्मिंग होता है।
we have plenty of sugar mills in and around Kolhapur. कॉटन टेक्सटाइल का काफी सारा है. एक पीसफुल सराउंडिंग जिसे बोलते हैं, अच्छा वेदर, सेटल होने के लिए अच्छा शहर है. भागदौड़ कोई नहीं. मेरे घर से मेरा ऑफिस हार्डली 5 मिनट में मैं पहुंच जाता हूँ. लगभग जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सारे रिलायंस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं. आई एम श्योर कि इसमें कोई भी मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगा. जो बड़े शहरों में, बड़े सिटीज में जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे कुछ है नहीं. और ओवरऑल इट्स रियली गुड प्लेस टू स्टे. Kolhapur, I will say one time it was having highest per capita income in entire country. Oh. हाँ, अभी भी आ सकता है नियर फ्यूचर में. We are on right path, I will say. तो कोल्हापुर का पॉपुलेशन कितना रहेगा सर? मेरे ख्याल से सिटी अगर देखेंगे तो it is somewhere around 6 lakhs, and if you're talking about district it will be something around 13 to 13.5 lakhs. 2011 का सेंसस के हिसाब से. वेरी गुड बैलेंस साइज, मतलब कोई एकदम छोटी सिटी भी नहीं, एकदम बड़ी सिटी. अनफॉर्चुनेटली द सिटी लिमिट जो है वो थोड़ा कम है. इसलिए अगर मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी लिमिट की बात करता हूँ तो पॉपुलेशन कम दिखता है, लेकिन उसको एडजेसेंट जो नए अर्बन सेंटर्स उनको अगर कंसिडर किया जाए तो काफी बड़ा शहर है. थैंक यू गिरीश भाई. यस रत्नेश भाई, आपके लिए क्या मायने रखती है कोल्हापुर सिटी? सब मेजर चीजें गिरीश जी ने बताई दी है. के साथ में ऐसा है कि सर कोल्हापुर के लोग एक बार जिनसे मिलते हैं तो वो कोल्हापुर के लोगों के ऊपर प्यार हो जाता है, ऐसा बहुत जन का कहना है. वेरी हॉस्पिटेबल. यहाँ पे ट्रांसफर होके जॉब के लिए जितने लोग आते हैं और 3-4 साल कोल्हापुर में रहते हैं तो उनको कोल्हापुर छोड़ते वक्त बहुत दुख होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बना लेते हैं कोल्हापुर में. क्योंकि वो सिर्फ जॉब नहीं, उसके साथ में एक परिवार, इतना बड़ा परिवार कोल्हापुर में बन जाता है, दोस्तों का काफिला बन जाता है. वो छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है. और एक प्यार, और उसमें से लगभग एक 30-40% लोग रिटायरमेंट के लिए कोल्हापुर आ जाते हैं, या रियल इस्टेट के हिसाब से देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी तो कोल्हापुर में ले लेते हैं ताकि कोल्हापुर के साथ आना जाना लगा रहे. इसके साथ में सर हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत अच्छा है. मैकेनिकल इंडस्ट्रियल कोल्हापुर स्किल ये बहुत अच्छा माना जाता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. हमारा कास्टिंग वर्ल्ड वाइज फेमस है. उसके साथ में कोल्हापुर अभी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते जा रहा है. टूरिज्म कोल्हापुर के लिए अभी एक नई इंडस्ट्री ओपन हुई है, उसके वजह से जितने टूरिज्म के बिजनेसेस है कोल्हापुर के नियर बाय 50 किलोमीटर में इतने अच्छे लोकेशंस है. हमारा पन्नाला है, अंबा है, गगनबावड़ा है, ज्योतिबा है. ये सब चीजें वीकेंड होम्स और घूमने के लिए बहुत अच्छा, मतलब मंदिर में आए और साथ में कोल्हापुर 2 दिन का टूर किया. ये इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छे तरीके से कोल्हापुर में बढ़ती जा रही है. हमें गर्व है कि हम कोल्हापुर में रह रहे हैं. महालक्ष्मी का आशीर्वाद है और बहुत अच्छे प्यारे मतलब छत्रपति शाहू महाराज जी ने हमें जो एक वारसा दिया है कि जिसमें सब कास्ट के लोग बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे दोस्ताने से रह रहे हैं. कोल्हापुर राज्य में कहीं पे भी दंगा हो जाए, कोल्हापुर एकदम अच्छी तरीके से रहता है. यहाँ पे कोई भी दंगा या किसी भी इशू की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होता. सो गुड. यस सर. नितिन भाई, आपके लिए कोल्हापुर क्या है? सर आई वुड, अभी गिरीश जी ने, रत्नेश जी ने सब, गिरीश जी लाइक स्टोल माय वर्ड्स एक्चुअली. तो कोल्हापुर आई विल से दैट इट्स अ ब्लेस्ड सिटी एक्चुअली. बी इट क्लाइमेट, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट इंडस्ट्री. मतलब यहाँ पे कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स है, ऐसा नहीं है, कुछ टेक्सटाइल के कुछ ब्रांड्स छोड़ के, लेकिन जो भी इंडस्ट्री यहाँ के है, वो जो भी लोकल इंडस्ट्री है यहाँ की, वो सेल्फ कंटेंट है. और हमारा ह्यूज स्टेक है ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, ह्यूज स्टेक कोल्हापुर का. जैसे रत्नेश जी ने कहा कि यहाँ का कास्टिंग, पीपल हैव ऑर्डर्स इन वेटिंग फॉर देम. मतलब 2-2 साल 3-3 साल का कास्टिंग का बुकिंग रहता है यहाँ पे लोगों का. तो इट्स अ ब्लेस्ड सिटी. माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है. एंड वी हैव हैड अ ग्रेट विजनरी king here, His Highness Chhatrapati Shahu Maharaj.
जिनकी उस वक्त की प्लानिंग की वजह से आज भी ये शहर, आई विल से दैट चल नहीं रहा है बट दौड़ रहा है, उस वक्त की प्लानिंग की वजह से आज भी ये सब चल रहा है। तो और स्पीकिंग अबाउट द पीपल हियर, दे आर लाइक लिव लाइफ किंग साइज। वाह, अगर आपको जिंदगी में दोस्त बनाना है तो एक कोल्हापुर का दोस्त जरूर होना चाहिए आपके पास। आपके पास तीन तीन है अभी। अभी मेरे पास 3 दोस्त है कोल्हापुर से। तीन। गिरीश भाई, अभी वहाँ की जो रियल एस्टेट है, उसमें किस टाइप की प्रोडक्ट और कब से आपके हिसाब से, कौन से साल से, कितने साल से ऐसा लगा कि हाँ रियल एस्टेट अभी कोल्हापुर में एक्सपांड हो रहा है, बीट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि पहले ऐसा मैंने देखा है कि जो 2 टायर 3 टायर सिटी में पहले बंगलों में लोग रहते हैं, फिर थोड़ा बहुत हुआ तो प्लॉटिंग करके बड़े बड़े सोसाइटी कॉलोनी बनते हैं, गेटेड कम्युनिटी, एंड देन एक्सपांड होता है तो फिर वापस अपार्टमेंट। तो वो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई कि जहाँ से अपार्टमेंट, फिर लिफ्ट वाले बिल्डिंग और those kind of things? Can you share something about that? Yes, sir, certainly. Sir, I think मेरा personal opinion है, in 1976 महाराष्ट्र brought in Act of Urban Land Ceiling. Yes. अर्बन लैंड सीलिंग लगभग मेरे बर्थ के टाइम की स्टोरी है। मुझे लगता है वहां से डेवलपर कम्युनिटी का जन्म हुआ। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसा अभी हम सभी ने बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज का वारसा हमारे सिटी को है। काफी सारे लोगों के पास बड़े लैंड बैंक्स हुआ करते थे। तो लैंड बैंक का करे क्या? अगर वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट ले जाएगी, आ जाएगी। तो मुझे लगता है खुद से थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1980s में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ और मैंने तो रियल एस्टेट ज्वाइन किया इन द ईयर 2000। 20-22 साल हो गए मुझे। और धीरे 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 जैसा आप बोल रहे वैसे ही सिटी की डेवलपमेंट हुई है। जैसे हर कोई पसंद करता था बंगलों में रहना। थोड़ा सा सिटी के आउटस्कर्ट में जाओ, बंगलो ले लो, बाद में अगर बच्चे का शादी हो जाए तो उसके ऊपर एक फ्लोर चढ़ा दो, काम खत्म अपना। वही वही एक एम रहता था हर एक मिडिल क्लास आदमी का कि अपना खुद का एक मकान हो। लेकिन जैसे जैसे सिटी बढ़ता गया, सिटी का पेरिफेरी बढ़ता गया, मुझे लगा थोड़ा जगह का जब स्कैरसिटी शुरू हुआ तो वर्टिकल बिल्डिंग्स का चलन शुरू हुआ। तो वर्टिकल बिल्डिंग्स में पिछले 10-12 साल में तो ट्रिमेंडस 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 ग्रोथ हमने देखा है। मतलब आई एम विटनेस टू फ्लैट प्राइसेस ऑफ व्हाट 800-900 रुपीज। जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया तो 900-1000 रुपए पर स्क्वायर फीट में अच्छा मकान, अच्छे एरिया में अच्छा मकान मिल जाता था। अब उसी एरिया में प्राइसेस हैव टच समवेयर अराउंड 6500 to 7000 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर प्रीमियम प्रोजेक्ट में आप कोल्हापुर में लेने जाओ तो आज 7000 रुपए का रेट चल रहा है। सो दैट ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट से 15 years, Yes. 15 years में इतना ट्रिमेंडस ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और कमर्शियल जैसे जैसे ये सिटी का मैं रेसिडेंशियल बोल रहा हूँ, और जैसे नितिन जी ने अभी बताया कि सिटी का खुद का एक पोटेंशियल है। वी हैव वेरी गुड engineering industries in and around Kolhapur. We have 3 fully developed industrial estates, MIDC जो बोलते हैं वो है। पास में इचलकरंजी which is a textile hub of state, वहाँ पे काफी सारी डेवलपमेंट है। तो वहाँ से सिटी का मुझे लगता है एक फन फ्लो आता है। कमर्शियल डेवलपमेंट भी काफी हो रही है। वी हैव कपल ऑफ 5-star hotels here in town, शॉपिंग मॉल है, अच्छे अच्छे जो कुछ भी ब्रांड्स आज मेट्रो सिटीज में आपने हमें देखने को मिलते हैं वो आज कोल्हापुर में मौजूद है। आईटी पार्ट पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि सिटी को एक पोटेंशियल है, शायद आगे चल के हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आई फील कोल्हापुर इज अ मिक्स इकोनॉमी नाउडेज। एक्सीलेंट। रत्नेश जी, आपने कहा कि आपका एनआईआर इंडिया में आपके एसोसिएशन ने ज्वाइन किया 5 साल पहले, यस सर, कोल्हापुर रियल्टर वेलफेयर एसोसिएशन। तो आपके हिसाब से कोल्हापुर में रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस कितना ऑर्गेनाइज दिखता है? कितने ब्रोकर रहेंगे टोटल कोल्हापुर में? अनऑर्गेनाइज प्लेयर को भी पकड़ते हैं अगर हम, और अगर आपके एसोसिएशन में केवल 30 ही मेंबर है समझो, तो बाकी लोग एसोसिएशन में क्यों नहीं आ रहे हैं? और उनको क्या ये मतलब बताना चाहिए कि आपका एसोसिएशन में मेंबर बनने से आपको कितना बेनिफिट हुआ, ताकि दूसरे जो ब्रोकर्स है, बिकॉज आपकी सिटी का अगर ग्रोथ होगा, डेवलपर बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उनको ज्यादा हैंड भी चाहिए, अच्छे ब्रोकर जो उनका फ्लैट बेच सके। यस सर। रेरा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कोल्हापुर में 84 रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है।
अच्छा, ओनली 84। ओनली 84। Okay. लेकिन और अदरवाइज कितने होंगे आपके हिसाब से? कोल्हापुर सिटी में और नियर अबाउट सिटी लगभग 1000 लोग काम कर रहे हैं सर। करेक्ट ना? तो मेरा भी ये मानना है गिरीश भाई कि ऑल ओवर इंडिया में देयर आर मिनिमम 10 लाख ब्रोकर, मिनिमम, उससे ज्यादा है, हो सकते हैं। 10 लाख के ऊपर है। और ऑल ओवर इंडिया का जो रेरा का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है मेरे पास, दैट इज अराउंड 56,000। अच्छा, सो ये ब्रोकर की पाठशाला शुरू करने का मकसद भी दूसरा है था कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डेकेड है 2030 तक, यहाँ से जो अभी 2023 से जो रैली चालू होगी रियल एस्टेट की, अगले 7-8 साल, मतलब इतना सारा काम आएगा, लेकिन स्किल मैन पावर नहीं है जो आपका प्रॉपर्टी जाके बेच सके। उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको रेरा में लेके आना पड़ेगा। अब रेरा में कभी आएंगे, उनको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तो दे रियली नीड टू गेट ट्रेन। तो इसलिए एसोसिएशन की जिम्मेदारी बहुत है कि ये जो 1000 लोग हैं ना, उनको ट्रेनिंग कैसे करें, उनको रेरा में कैसे लेके आए, उनको आपके एसोसिएशन, देखो आपका एसोसिएशन अभी 30 मेंबर है, अगर कल आप क्रेडाई के पास जाते हो और बोलते हो कि हमारा कोल्हापुर एसोसिएशन में 350 मेंबर है, तो उसका बहुत दोनों साइड से वजन पड़ेगा और दोनों साइड से फर्क पड़ेगा। और एंड रिजल्ट ये होगा कि हम जो कंज्यूमर है, जो कोल्हापुर में फ्लैट खरीदने वाला है या घर खरीदने वाला है, कमर्शियल खरीदने, उसको एक हम प्रोफेशनल ब्रोकर देते हैं ताकि उनका पैसा किधर गलत जगह पे नहीं जाए, उसको अच्छा सर्विस मिले, उसको अच्छा सर्विस। विनोद भाई, मुझे आपके इस माध्यम के द्वारा सभी आज देख रहे ब्रोकर्स के लिए एक मैसेज देना है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट, हमें बहुत प्राउड है कि हम नसीब से रियल एस्टेट कंसल्टेंट बने हैं। ये मौका हमें इस जन्म में मिला। यस। ये काम ऐसा है सर कि इस काम में हम लोग पैसे के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं, लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। गिरीश जी जैसे लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं, लोगों को वहां तक लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक गांव का, सिटी का नजरिया या उसकी जो डेवलपमेंट है वो बनाने में, डेवलप करने में हम लोग एक पार्टिसिपेंट हो रहे हैं उसमें। अच्छे अच्छे ब्रांड्स ला रहे हैं सिटी में और लोगों के सपने पूरे करते करते मैं गारंटेड यहाँ से आपको बताता हूँ कि अपने खुद के भी सपने पूरे होते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें, पहले एक ब्रोकर की खासियत है कि ब्रोकर ईमानदार बंदा है, जो पहले काम करता है, काम का रिजल्ट आता है तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं हम लोग की रिजल्ट नहीं आया तो पैसे नहीं, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पैसे पे करते हैं, रिजल्ट नहीं आया तो पैसे देंगे ऐसे नहीं बोलते हैं। एक ब्रोकर इंडस्ट्री है जो ईमान इतबारे अपने क्लाइंट के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है और वो कोशिश में कामयाब हो जाता है, तभी उसको उसका मेहनताना मिलता है और वो हम इज्जत से लेते हैं। और उसका मेहनताना लेते वक्त, ये रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है उसको कोई भी वॉल्यूम नहीं। आप 1 लाख ब्रोकरेज कमा सकते हो, आप 1 करोड़ ब्रोकरेज भी कमा सकते हो। सपने बड़े होने मांगते हैं, काम का तरीका अच्छा होना मांगता है ये। और एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे तो ऐसी बहुत सी हर वर्किंग एसोसिएशंस है, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट ये एक ही ऐसी एसोसिएशन है जहां पे इंफॉर्मेशन सेलिंग होती है। और इंफॉर्मेशन सेलिंग होने के वजह से हम लोग 10 बंदे, 20 बंदे, 40 बंदे एक जगह पे मिलते हैं तो अपने अपने प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं। जहां पे एसोसिएशंस का बेनिफिट तो होता है कि एक इकट्ठा आके कोई रूल बनाए, लेकिन ये एक ही एसोसिएशन ऐसा है कि जिसमें एक इकट्ठा आने के बाद इंफॉर्मेशन देते हैं और खुद का भी बेनिफिट होता है, डील हो जाते हैं। कोल्हापुर रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन ये 5 साल से काम कर रही है। 5 साल में काम करते करते 30 लोगों की टीम बन गई और 30 भाई इकट्ठा काम कर रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन गया। और ये काम करते करते सर हमने ये 5 साल में कोल्हापुर जैसे सिटी में काम करते हुए लगभग 5 करोड़ का एक्चुअल ब्रोकरेज हमने इंटर एसोसिएशन किया है काम। मेरा सब एसोसिएशन ब्रोकर्स
जो देख रहे हैं या उनके लिए एक मैसेज है कि ये बिजनेस ही ऐसा है कि जिसके साथ बात करोगे और जहाँ खड़े होगे जहाँ ये धंधा शुरू होता है। क्या बात है। तो प्रोफेशनल लोगों के साथ में जितना ज्यादा आप अटैच रहोगे उतना ज्यादा आपको फायदा ही होगा, यहाँ पे नुकसान नाम की चीज ही नहीं है। थैंक यू सर। बहुत अच्छे रत्नेश भाई, आपने लास्ट में यही बोल दिया जो नितिन ने बोला कि आपका स्कूटर आप किसके साथ टकरा रहे हो। आप अगर आप कोल्हापुर में ब्रोकर हो और आप अभी तक कोल्हापुर एसोसिएशन में मेंबर नहीं बने हो तो आप अपना स्कूटर लेके घूम रहे हो। आप कोल्हापुर में जल्दी मेंबर बन जाइए ताकि आपको अपने आसपास बहुत सारे BMW और मर्सिडीज के साथ कनेक्ट करने का ऑल ओवर इंडिया मौका मिलेगा। दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। न केवल आप कोल्हापुर में बिजनेस कर सकते हैं लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी कोने में कोल्हापुर में बैठ के कंफर्ट लेवल से बिजनेस कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग थ्रू एसोसिएशन। नितिन भाई, यस यस विनोद भाई एक ही सेकेंड सर। प्लीज। लोकल एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन में अभी विनोद सर ने कहा वही एक बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट है कि लोकल एसोसिएशन में सब लोकल बंदे ही हम लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ का ही बिजनेस करते हैं। लेकिन जब नेशनल एसोसिएशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो पैन इंडिया किसी के साथ में भी कहाँ पे भी बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और हमारे एसोसिएशन के लोग वो कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। Yes. आज का ये जो सेशन है वो उसका प्रूफ है। अगर हम NIR इंडिया के थ्रू नहीं मिले होते थे तो इतना इजीली मैं ये सेशन नहीं कर पाता था। मुझे ढूंढना पड़ता था कि वहाँ के अच्छे ब्रोकर कौन है, वहाँ के बिल्डर कौन है। आई वुड हैव टू, मुझे अपने हिसाब से रिसर्च करना पड़ता था, बहुत टाइम जाता था। और ये जो कंफर्ट लेवल है हमारा, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है एक दूसरे के प्रति, उतना शायद नहीं हो पाता। थैंक यू रत्नेश जी। और नितिन भाई, अभी का जो मार्केट है, खास करके लॉकडाउन के बाद में जो परिस्थिति हुई है सब जगह पे, उसके पहले मार्केट सब ऑल ओवर इंडिया में ठीक ठाक चल रहा था, कोई इतना सेल नहीं हो रहा था, प्राइसिंग चैलेंजिंग थे। लेकिन लॉकडाउन फर्स्ट खुलने के बाद में और खास करके महाराष्ट्र में जो स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट मिला है, प्रीमियम का बेनिफिट मिला है, तो रेडी इन्वेंट्री फटाफट निकल गई है। मतलब ऑल ओवर हमको बराबर चैलेंजेस है। करेक्ट। तो एक तो आपके वहां अभी रेडी में इन्वेंट्री कितनी है, बोथ रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों में। और दूसरा, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एज अ ब्रोकर, एज अ रियल्टर, वी आर द फर्स्ट बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर सिटी। ये खाली टूरिज्म वाले का काम नहीं है, बट मेरी जी आप सोचने जैसी बात है, ब्रोकर वो बंदा है जो आपकी सिटी को बाहर जाके बेच के आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके। उससे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। टूरिज्म वाला बंदा कुछ होटल बेचेगा, लेकिन रियल एस्टेट ब्रोकर आपकी पूरी सिटी को बेचता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। I always feel marketing real estate is very difficult. On the other hand, you should put emphasis on marketing your city. आप बाहर जाके आपका सिटी बेचो, अपने आप रियल एस्टेट अपने बेचते। तो मैं जब एक ब्रोकर की पाठशाला का ये सीजन का कॉन्सेप्ट कर रहा था तो मैं हमेशा कहता था कि सबसे पहले आप जो भी बिजनेस करते हो, आपको सबसे पहले अपने देश से तैयार होना चाहिए। Then you should think first about your country, and then about your state, and then about your city, and then about your family. अगर ये तीन चीज अगर आपने कर लिया ना तो आपका तो अच्छा होना ही होना है सर। आपको ये फोकस करना है कि मेरी सिटी अच्छी हो। अगर आपकी सिटी अच्छी है तो आप अच्छे होने ही है। लेकिन आप बोलेंगे अगर खाली मैं अच्छा हूँ, मेरी सिटी को जाने दो, वो फिर आपका जो बैलेंस है ना वो निकल जाता है। करेक्ट। तो नितिन भाई, अभी कितना इन्वेंट्री आपके हिसाब से रेडी में अवेलेबल है? और दूसरा, आपके हिसाब से एक प्रोफेशनल ब्रोकर, बिकॉज आगे चल के है ना प्रोफेशनल ब्रोकर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो एक रियल एस्टेट ब्रोकर को प्रोफेशनल बनना है तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? मैं पहले प्रोफेशनल ब्रोकर को एड्रेस करना चाहूँगा। तो प्रोफेशनल ब्रोकर इज वन हु इज लाइसेंस्ड। मैं अभी ये कहना चाहूंगा क्योंकि पहले तो रेरा लाइसेंस होता नहीं था, तो नाउ वी आर लाइक हैविंग अ लाइसेंस टू डील इन दिस फील्ड। तो एक तो क्योंकि अभी रेरा तो एग्जाम्स भी ला रही है, तो ही शुड बी लाइसेंस ब्रोकर जो कि बायर और सेलर के लिए ट्रांसपेरेंटली ट्रांजैक्शंस करता हो, एथिकली, जिसको लोकल मार्केट का नॉलेज हो, अपडेट्स हो, नेशनल मार्केट का अपडेट्स हो। नेशनल मार्केट के अपडेट्स के लिए यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल एसोसिएशन लाइक दैट। जो भी ट्रेंड्स आते हैं नए नए, वो अपडेटेड रहे उसमें। डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट पे उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस बिफोर हैंड कर लेना एक्सपेक्टेड है।
बिकॉज वो उसकी वजह से वो अपने बायर को या सेलर को अच्छी एडवाइस दे पाता है. ही शुड बी गिव सुटेबल एडवाइस टू हिज क्लाइंट, keeping their interest before his. तो जो भी है मतलब सेल हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ब्रोकरेज मिलेगा, इसलिए सेल करने से अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट में क्या जा रहा है वो एडवाइस देना. भले वो एडवाइस मानना ना मानना वो क्लाइंट का काम है, लेकिन एडवाइस देना अपना काम है. वी आर नाउडेज वी यूज द टर्म एज अ कंसल्टेंट. सो कंसल्टेंट का काम करना जरूरी है कि ही इज द प्रोफेशनल ब्रोकर एज पर माई थिंक. एक्सेलेंट. और अभी रेडी इन्वेंटरी कितनी आपके हिसाब से, व्हाट इज सर, एक स्ट्रेंज सिचुएशन के थ्रू हम लोग जा रहे हैं. लाइक वी डोंट हैव मच रेडी टू मूव इन्वेंटरी हियर, क्योंकि 4-5 सालों से कुछ ये चेंज इन बायलॉज की वजह से कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे थे, और पुराने जितने बाकी थे वो कोविड के बाद जो इतना डिमांड बढ़ गया, तो रेडी टू सेल भी बिक गया, और जो भी ये लोगों ने नया लॉन्च किया वो भी पूरा बिक गया. Please correct me if I'm wrong. There is Yes, sir, as absolutely, per absolutely, sir. We don't have any unsold inventory. हाँ, सिटी में जितना मैं क्रेडाई से कनेक्टेड हूँ, लोगों से बात करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, अनसोल्ड इन्वेंटरी है नहीं. और जैसा नितिन जी बोल रहे हैं, फ्यूचर इन्वेंटरी भी काफी सारा हम बेच चुके हैं. एक्सेलेंट यार. सी मुंबई में जैसे प्रीमियर का जो प्रीमियम का बेनिफिट मिला है गिरीश जी, दिसंबर तक जो था बेनिफिट, मुंबई में अभी तकरीबन 15 करोड़ स्क्वायर फीट का काम चालू है जिनका फाइल अप्रूवल हुआ है. ओके. इट्स अ ह्यूज इन्वेंटरी. और बिकॉज जैसा आपने कहा वहाँ यहाँ पे भी वही हालत है, रेडी इन्वेंटरी काफी निकल गई है. अब जो बची है या तो उन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए है, या फिर हॉट लोकेशन है या फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे सराउंडिंग ठीक नहीं है, वो हिसाब से कस्टमर नहीं ले रहा है. आपके वहाँ कोल्हापुर में अभी टोटल कितने प्रोजेक्ट्स नए जो जैसे दिसंबर के पहले जो अप्रूवल हुआ है, उसमें आपके हिसाब से अभी टोटल कंस्ट्रक्शन कितना काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन? मेरे हिसाब से सर कोल्हापुर के अंदर अभी अराउंड 110-120 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे. ओके. और कुछ 500-600 फ्लैट्स बन रहे होंगे. सॉरी, 5-6 हजार फ्लैट्स बन रहे होंगे. सॉरी. That will come to possession by another 1 साल 1.5 साल के अंदर पोजीशन में आ जाएंगे सारे. जितना लगता है मुझे काफी सारी इन्वेंट्री इसमें से बिक चुकी है अभी. जो प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ वो लगभग 60-70% ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हुए हैं. फॉर्चुनेटली इट इज अनलाइक ऑफ कोर्स आई हैव सीन अदर सिटीज, पुणे वगैरह है जहाँ पे सेल थोड़ा टुवर्ड्स रेडी पोजीशन फ्लैट की तरफ रहता है. वैसे कोल्हापुर सिटी का सिनेरियो है नहीं. इमीडिएटली प्रोजेक्ट लॉन्चिंग पे काफी सारा सेल हो जाता है. अच्छा, आपका जो लॉकडाउन के पहले जो प्राइसिंग थे, फॉर एग्जांपल जो भी थे, मतलब आप 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ 2019 जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, उसमें और आज के प्राइस में कितना फर्क पड़ा है, मतलब कितना चेंजेस आया प्राइसिंग? रफली सर 15% का प्राइस हाइक हुआ है, लॉकडाउन की वजह से नहीं. उसके बाद में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े, स्टील का प्राइस जो बढ़ा, वो प्राइस कहीं पे क्वेश्चन करना चाहिए था. लगभग हमने जो एस्टिमेशन निकाला है मेरी फर्म ने, 200 से 250 रुपए का करीब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी आई है. और आगे मुझे कोई इमीडिएट फ्यूचर में मुझे कोई सिग्नल्स नहीं दिखते कि जिसमें ये प्राइस करेक्शन होगा, प्राइस कम होगा. एक्चुअली ये प्राइसेस मुझे लगता है लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक रुके हुए थे. लीव अपार्ट प्राइस इन द स्टील प्राइसेस, मेटल प्राइसेस का प्राइस अगर छोड़ देंगे, जो लोकल यहाँ का मार्केट है, अगर रेती वगैरह भी पकड़ लेंगे या लेबर कॉस्ट भी पकड़ लेंगे, तो 2 साल कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं, तो एकदम से आ गया. वहां पे भी फैक्टर से उसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है. तो तकरीबन 500 रुपए तक का जनरलाइज सेलिंग पॉइंट पे प्रेशर बन गया है. तो अगर कोल्हापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको पूछूं, हर एक सिटी का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने बताया MIDC है वहाँ पे 2-3, करेक्ट. फिर आपने शुगर की बात की, टेक्सटाइल की बात की, उसके अलावा एजुकेशन जैसे होटल्स है फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म के हिसाब से, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है अभी, और आगे फ्यूचर में कितना डेवलपमेंट का स्कोप है? सर पिछले 10, अगर आप यही क्वेश्चन मुझे 10 साल पहले पूछते हो, डिकेड अगो,
हाँ। व्हाट इज ड्राइविंग कोल्हापुर, तो मैं शायद उस वक्त फर्स्ट बोल देता एग्रीकल्चर। हाँ। आज ये 10-20 साल में जो मैंने कोल्हापुर का चेंज विटनेस किया है, एग्रीकल्चर काफी पीछे है, इंडस्ट्रियल सिटी बन गई है कोल्हापुर। हाँ। इंडस्ट्रियल में काफी सारा डेवलपमेंट है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हब बन गया है। और आगे 10 साल में अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कोल्हापुर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट आईटी डेस्टिनेशन। रिसेंटली आई हैव अ कंपनी जिनको मैंने रेंट आउट किया है, उनके सीईओ आए थे, आई वाज जस्ट हैविंग वर्ड विद हिम कि क्या लगता है। दे हैव बेस इन हैदराबाद, वाइजैक, बेंगलोर, चेन्नई, कोल्हापुर, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सो मेनी प्लेसेस। हाँ। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बताया कि मेरे सारे इंडिया ऑपरेशंस में से सबसे इफिशिएंट हाँ। ऑपरेशंस कोल्हापुर के हैं। वाह। आई एम गेटिंग द चीपेस्ट मैन पावर हियर, और सबसे केपेबल मैन पावर मुझे कोल्हापुर में मिल रही है। नाउ दे आर कन्वर्टिंग इट टू अ ट्रेनिंग हब काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे दे विल अब्सॉर्ब मैन पावर हो हियर, तो ट्रेन करके उनके बाकी के लोकेशंस पे ट्रांसफर करेंगे। तो वो एक सिग्नल मुझे पॉजिटिव लगा कि काफी सारी आईटी डेवलपमेंट सिटी के अंदर आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो बड़ी सिटीज है वो काफी ओवर फ्लडेड हो गई है। पूना में कम से कम 40-50 किलोमीटर का ट्रैवल है हर एक एम्प्लॉय को। यस। तो बस में 1 घंटा बिताता होगा, शाम को 2 घंटे बिताता होगा। प्रोडक्टिविटी कहाँ से देगा कंपनी को? मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ रही है। बाकी रिटेल सेगमेंट में मैं जो देख रहा हूँ, रिटेल सेगमेंट में आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप तो बॉम्बे में बैठे हैं, हर एक रिटेलर को कोल्हापुर में जगह चाहिए। यस। कोई भी ब्रांड हो उसको कोल्हापुर में एक्सपांड करना ही है। सबने एक्सपांड किया हुआ है, फिर भी आप भी सेकंड लाइन वाली जो है एब्सोल्युटली। सबको कोल्हापुर में जगह चाहिए। रेसिडेंशियल पॉइंट व्यू से भी मैं जो देख रहा हूँ, जो प्राइसेस बढ़ रही है और बढ़ते हुए प्राइसेस में भी डिमांड है, सेल्स हो रहा है, मतलब अभी भी वहां पे गैप है, वहां पे शॉर्टफॉल है, सप्लाई का शॉर्टफॉल में अगेंस्ट डिमांड। एक्सीलेंट। रत्नेश भाई, दो चीज पूछना चाहता हूँ आपको। एक तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोकेशन, 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिटी को डेवलप होने के लिए। एक है आपका लोकेशन, जहां से कनेक्टिविटी मेजर सिटी बाय रोड, रेल एंड एवरीथिंग इज देयर। व्हाट अबाउट एयरपोर्ट? कोल्हापुर का एयरपोर्ट या मेट्रो तो बहुत टाइम लगेगा कोल्हापुर को। आई डोंट थिंक दे नीड मेट्रो राइट नाउ। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल, हॉस्पिटल, आपका एजुकेशन और हॉस्पिटल्स में व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव? यानी एसईजेड या गवर्नमेंट के कोई बड़े प्रोजेक्ट आगे अनाउंस हो रहे हैं? तो रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो उसके आसपास के जो भी लोकेशन है वो ऑटोमेटिक पिकअप हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आप देख रहे हैं कोल्हापुर में? सर, कोल्हापुर का आपका जो पहले आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। पिछले 10 साल के 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आज का कोल्हापुर का एयरपोर्ट हमें कुछ होप्स लग रहे हैं कि डेफिनेटली ये अभी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और जैसे गिरीश जी ने बताया कि ये सब बाकी के बिजनेसेस है, रिटेल बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पे डिमांड है, लेकिन ये आईटी का डिमांड दिखाई देता है। लेकिन ये एयरपोर्ट प्रॉपर नहीं होने की वजह से थोड़ी तकलीफें जो आ रही है। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड व्हेन ही टॉक्ड अबाउट आईटी। तो मैंने सोचा अगर आईटी के सर्टेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और सर, ये कनेक्टिविटी अभी बहुत अच्छी तरीके से, नाइट लैंडिंग शुरू हो गया, फ्यूल फिलिंग चालू हो रहा है, और ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से चालू हो जाएगी। अभी ये एयरपोर्ट अच्छा रन करेगा, अच्छा बिजनेस भी दे रहा है, तो इसके वजह से कोल्हापुर के डेवलपमेंट में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। रिटेल के बारे में जैसे अभी सर ने बताया कि रिटेल बहुत, हर एक को कोल्हापुर में क्यों आना है, इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि कोल्हापुर की स्पेंडिंग नेचर, कोल्हापुर का जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है। करेक्ट। आप पुणे मुंबई के किसी भी शोरूम में जाएंगे अच्छे, और कोल्हापुर कहेंगे तो वो अच्छा माल ही दिखाएगा, उसको मालूम है ये किसी भी पोजीशन में आया हो, ये खरीदने का ताकत रखता है। वेरी गुड। तो और इसी तरह एयरपोर्ट की वजह से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। एजुकेशन भी कोल्हापुर में बहुत अच्छे कॉलेजेस है, एमबीबीएस कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, संजय वोडावत इंटरनेशनल स्कूल अभी है, उसके भी सब इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है। डीवाई पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, ये बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए भी कोल्हापुर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है। एक्सीलेंट। We have international schools as well.
अच्छा, ओके ओके ओके। नितिन जी, वहां पे अभी जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें हाइट के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो रेसिडेंशियल में सबसे कितना हाइट का भी परमिशन है वहां पे, और कमर्शियल में किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस वहां पे बने हैं अभी तक, और प्राइसिंग अगर आप कोल्हापुर का, बिकॉज मैं कोल्हापुर नहीं आया तो मुझे लोकेशन मालूम नहीं है, तो अगर आपको 3 टॉप लोकेशन बताना है रेसिडेंशियल और कमर्शियल में, जैसे हम कमर्शियल में आज बॉम्बे में किसको बात करेंगे तो बीकेसी बोलेंगे तो दैट बिकम नंबर 1, तो हाईएस्ट वहां पे होता है प्राइस रेंटल का, कमर्शियल का। और अगर साउथ बॉम्बे की बात करें, वालकेश्वर है, मलबार हिल्स है। ऐसे कोल्हापुर के टॉप 3 लोकेशन रेसिडेंशियल और कमर्शियल में बताइए, और वहां पे क्या प्राइसिंग है? सर, कोल्हापुर के टॉप 3 लोकेशंस में अगर आप देखोगे तो रेसिडेंशियल में ताराबाई पार्क आता है, जो कि अभी कमर्शियल में भी टॉप लोकेशन हो रहा है। हर रिटेल चाहता है कि उसका एक आउटलेट ताराबाई पार्क में हो, जबकि इन्वेंट्री बहुत कम है, नया इन्वेंट्री आ रहा है। और कमर्शियल में राजारामपुरी आता है। तो ये जो ई वर्ड का जो जोन है हमारा, वो पूरा टॉप इसमें आता है। और कमर्शियल के रेट के बारे में बात करोगे तो दैट विल स्टार्ट, अगर शोरूम की बात करनी है तो 15-16 हजार से लेके 25 हजार तक का पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पे चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। और मतलब 30 हजार का भी डील हुआ है, लेकिन दैट केस टू केस डिफर करता है, छोटा तो शॉप होता है मैक्सिमम कुछ। मैक्सिमम यू आर सेइंग 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज पर स्क्वायर मतलब फीट। प्राइम से प्राइम लोकेशन में अगर किसी को रिटेल कुछ खरीदना है कोल्हापुर में, 30,000, तो 30,000 30,000 तक मिलता रुपीज है। एंड दिस 30,000 इज ऑन सुपर बिल्टअप एरिया। ऑन सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप कार्पेट के ऊपर कितना 60-70% रहता है वहां पे, कि 100%? नहीं, अब ये 30%। अच्छा है क्योंकि 30% होता है कोल्हापुर में। वी आर नॉट लाइक पुणे और मुंबई जैसा नहीं, 30% 30% लेस करना है कि 30% ऐड करना है? 30% ऐड करना है, मतलब कारपेट पे सॉरी 30%। सर, 30 नहीं 40 का चल रहा है आजकल। हाँ हाँ। हाँ, अभी अभी नया तो बिल्डिंग 30 40 माइनस हो गया, मतलब अगर आप After the new bylaws coming in, they have charged for all the common areas. हाँ। या now प्रेशर है उसके ऊपर, 40% तक चल गया। गिरीश भाई, ये इतनी अजीब बात है ना, हिंदुस्तान में हर सिटी का अपना स्टाइल है, जैसा हर सिटी का अपना मिजाज है, तो रियल एस्टेट बिजनेस का भी हर सिटी का अपना स्टाइल है। तो राइट। नितिन जी कह रहा हूँ। और रेसिडेंशियल की अगर बात करेंगे तो आज की डेट में नया प्रोजेक्ट कोई भी आपको 4,500 रुपए से नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे पर स्क्वायर फीट, कहीं भी जाओ। ओके। अगर जैसे गिरीश जी ने बोला कि जो प्राइम लोकेशंस है वहां पे आपको 7,000। वी आर इवन सेइंग रिसेल में कुछ लोकेशंस, जब एक बार एक आध बिल्डिंग जब फेमस हो जाता है और वहां पे फ्लैट मिलता नहीं है, तो पीपल आर इवन रेडी टू पे मोर देन दैट। तो 7,000 और 4,500 ये रेसिडेंशियल का ये है। एक्सेलेंट। गिरीश भाई, आपके कोल्हापुर में अभी तक, बिकॉज हर एक सिटी में मैंने देखा है, एक दो डेवलपर जो होते हैं ना, उनको बहुत जुनून होता है सिटी के लिए कि मेरी सिटी में मुझे सबसे टॉप चीज मुझे बनानी है, बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम उनके बायोडेटा में आता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कोल्हापुर इन्होंने ये चीज ये बनाई। बनाया। तो एक कॉन्सेप्ट निकला है छोटे सिटी के अंदर, गुजरात में मैंने देखा है, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, मेरे ऑफिस है यहाँ पे। तो लग्जरी सेगमेंट में एक फ्लोर पे एक फ्लैट या 2 फ्लैट, जिसमें 4-4,500 फुट का एकदम स्पेशियस फ्लैट, 3 बेडरूम 4 बेडरूम विथ स्विमिंग पूल, ऐसे एमिनिटीज वाले। इस टाइप के प्रोजेक्ट कितने हैं कोल्हापुर में? सर है सर, हाँ। तो खुद के चल रहे प्रोजेक्ट उस सेगमेंट में, और मुझे उसमें काफी सारा पोटेंशियल दिख रहा है। बहुत आएगा। जैसे हमने बात की एक बंगलो कल्चर की। हाँ, हाँ। जब सिटी डेवलप होती तो लोग बंगलो बना देते, बाद में उसके ऊपर फ्लोर चढ़ा देते। Correct. अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि वही लोग दे वांट टू शिफ्ट इन अ बेटर लोकेलिटी, दे वांट टू शिफ्ट इन अ प्रोजेक्ट विद बेटर एमिनिटीज। तो और एक सिक्योरिटी फीलिंग, सिक्योरिटी एक रहती है कि आप एक गेटेड कम्युनिटी में हो, आप एक बिल्डिंग में, वर्टिकल बिल्डिंग में हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, जितना आप वर्टिकल जाओगे अच्छा व्यू आएगा। तो काफी सारे लोग वो प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके साथ बजट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, 4 BHK होना चाहिए, 5 BHK होना चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर्स होने चाहिए, एक आधा छोटा सा स्टडी या होम थिएटर होना चाहिए, एम्पल पार्किंग होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। काफी सारी डिमांड है जो नितिन जी ने अभी बताया, ताराबाई पार्क वगैरह एरिया में उस प्रकार के काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आजकल। तो ये जो टाइप के प्रोजेक्ट है उसमें प्राइसिंग वही 7-7,500 की है पर स्क्वायर फीट की, उसी लगभग उतनी ही है उसके आसपास। तो ऐसे I would like to add one thing. सॉरी,
आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, एक वर्टिकल, एक सिंगल फ्लोर सिंगल फ्लैट के प्रोजेक्ट तो बन ही रहे हैं, लेकिन देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे छोटी छोटी टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 BHK है, 3 BHK है, तो पीपल आर क्लबिंग दोज यूनिट्स टुगेदर। yes, दो दो 2 BHK, तीन दो 3 BHK, किसी किसी प्रोजेक्ट आई हैव सीन प्रोजेक्ट जहाँ पे पूरा फ्लोर एक ही पार्टी ने खरीदा हुआ है। दे आर हैविंग 7,000 स्क्वायर फीट ऑफ पेंट हाउस इन ऑन अ सिंगल फ्लोर। वाह। तो ये कोल्हापुर में हो रहा है। ये इंडिया के सब सिटी में हो रहा है ये चीज ये कि सब सिटी में हो रहा है। जिनको अपने सिटी को छोड़ के वो बंदा सोचता है कि मैं बम्बई में जाके 2 बेडरूम का फ्लैट लूं, उससे अच्छा मेरे गांव में मेरी सिटी में मैं 7,000 के फुट के फ्लैट में राजा बन के रहूं, यू नो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। गिरीश भाई, Actually, sir, it is good. You said nothing wrong in that. I'll put it in other words. It's good for us, all of us. एब्सोल्युटली इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। और सर, मनोज भाई, ये जो हाइट की मैं बात कर रहा था कि अभी वहां पे कितनी हाइट की परमिशन है सर कोल्हापुर में? Actually, sir, 70 मीटर तक बायलॉज के हिसाब से अलाउड है। हाँ, इट इज यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन विच इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर स्टेट, मुंबई छोड़ के ऑफ कोर्स। हाँ, तो 70 मीटर तो उन्होंने दिए, उसके आगे भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक हाई राइज कमेटी उन्होंने बनाई है, कमेटी का अप्रूवल लेके। कोल्हापुर में हमारे पास जो टर्न टेबल लैडर है, रिसेंटली वी गॉट अ टर्न टेबल लैडर हियर इन टाउन, 50 मीटर की उसकी, 55 मीटर की उसकी हाइट है। तो अभी 50-55 मीटर के लगभग काफी सारी बिल्डिंग्स बन रही है। इसके आगे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट, जब मैं 50 मीटर बोलता हूँ तो 13-14 फ्लोर्स होते हैं, 14-15 फ्लोर्स तक भी कंफर्टेबली बिल्डिंग्स आ जाएंगी। और कमर्शियल में जो मॉल बने वो कौन सी साइज के, कितने मॉल है अभी कोल्हापुर में, और विच इज द बिगेस्ट साइज? मॉल फुल फ्लेज मॉल एक ही है फिलहाल, ओके, मेरे ख्याल से 1.5 लाख स्क्वायर फीट का रहेगा रत्नेश। 1.5 लाख स्क्वायर फीट है। और रिलायंस का भी मॉल है, वो बड़ा है, लेकिन अभी उन्होंने मेजर ऑफिस एरिया उनका वहां पे शिफ्ट कर दिया। तो ये जो 1.5 लाख फुट का मॉल बना है वो पूरा लीज पे है कि उसमें दुकानें बेच के रेंटल पे, कैसा है? पूरा लीज पे है सर। कंप्लीट है, तो ऑनर जो डेवलपर है उन्होंने खुद ने रखा है? यस सर। तो मेरे ख्याल से वहां पे तो इन्वेंट्री कुछ बची नहीं होगी अभी आज की तारीख में, आई थिंक 100% वेटिंग है उनका सर। हाँ, वेटिंग है, वेटिंग है। तो आर यू प्लानिंग सर? यू शुड प्लान नाउ, यू नो, आई थिंक कोल्हापुर नीड एटलीस्ट, सोच रहे सर, उसी लाइन पे काम चल रहा है। 3-4 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा मॉल आना चाहिए वहां पे मेरे ख्याल से। So there is an opportunity and possibility both. यस सर, डेफिनेटली आ जाएगा। अप्रूवल जो है ना सर, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ रियल एस्टेट इज अ लोकल बिजनेस, और ये हमेशा लोकल बिजनेस रहेगा। धीरे धीरे मेरे साथ काफी हमारे दोस्त थे, तो हमने साथ में जिसने बिजनेस किया था, उसमें से कुछ हमारे एसोसिएशन में से तकरीबन 8 या 9 ब्रोकर डेवलपर बन गए पिछले 25 साल में। तो मुझे ये चीज हमेशा कहते हैं, अरे भाई तुम इतने स्मार्ट हो, तुम क्यों डेवलपर नहीं बनते? तो मैं ये चीज उनको बताता कि डेवलपर और ब्रोकर में क्या फर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एज अ ब्रोकर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू डेवलपर। डेवलपर आप जो भी बिल्डिंग बनाएंगे आपकी लाइफ टाइम में, समझो आपने 50 बिल्डिंग बना ली मैक्सिमम, मैं बहुत हाई लेवल के हिसाब से, तो आपके लिए वो 50 बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज आप एज ए डेवलपर दूसरे लोग क्या बना रहे हैं वो शायद कंपैरिजन के लिए देखेंगे, बट यू विल नॉट हैव दैट रिलेशनशिप विद दोज बिल्डिंग। बट एज ए ब्रोकर आई हैव अपॉर्चुनिटी टू सेल एंटायर वर्ल्ड। मैं दुनिया में कौन से भी डेवलपर के साथ, आई हैव मेट डोनाल्ड जो ट्रम्प है उसके लड़के को मिला हूं, सो व्हेन ही केम टू मुंबई, सो as a broker I can see more opportunity, I can sell everything, you know, मैं विजिटिंग कार्ड लेके किसी भी डेवलपर के ऑफिस में जा सकता हूँ, किसने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो I can go and visit that product, but as a developer मेरा जो लगाव है ना वो खाली मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर ही रह जाएगा। सही है सर, सही है सर, मेरा खुद का बेबी है ना, वो मेरा खुद का बेबी है तो रहेगा लगाव। सो मुझे ऐसा लगता था दूसरी एक बात कि सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग वर्क है ना जो डेवलपर के लिए, वो है अप्रूवल प्रोसेस, क्योंकि वो काम है ना उसके, वो डेवलपर के अंदर वो अगर स्किल नहीं है ना तो वो बंदा डेवलपर बन सकता है लेकिन वो फेल हो जाएगा, बिकॉज कैलकुलेशन, हमारा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रिस्की इंडस्ट्री अगर कोई इंडिया में है तो वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट। तो
मुंबई में तो हमको मालूम है क्या चैलेंजेस है, आपको भी मालूम है, लेकिन कोल्हापुर में कैसा प्रोसेस है, हाउ सिंपल इज इट एंड उसका कॉस्ट कितना है? सर आपने अप्रूवल प्रोसेस पे जो इनिशियल बताया उसी के ऊपर मैं थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहता हूँ। Please. किसी बहुत बड़े डेवलपर में हमारे इसमें बताया है कि हमारा धंधा लगता ग्लोबल है लेकिन है लोकल। Absolutely, वो लोकल ही रहेगा। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आए, सारे पिट गए। फेल है। इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी छोटी छोटी सिटीज में गए, वहां पे भी कुछ सक्सेस नहीं हो पाए। और सबका क्रक्स जो है वो है अप्रूवल्स। अप्रूवल जिसको बनता है वही बिल्डिंग बना सकता है, अगर अप्रूवल नहीं बना तो आगे क्या करेंगे। Sure. फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट मच हार्डल्स, लेकिन फिर भी मेरे जैसे डेवलपर का 50% 50% ऑफ द टाइम गोज इनटू अप्रूवल प्रोसेस ओनली। इतने सारे लॉज बने हुए हैं, लैंड क्लियरेंसेस है, एनए है, एनवायरमेंट में जाना है, एनवायरमेंट से आने के बाद बिल्डिंग परमिशन है, काफी सारे बाद में अभी रेरा का अप्रूवल है। इतने सारे, रेरा का तो सबसे आसान अप्रूवल है फिर भी, लेकिन ये बाकी के अप्रूवल्स में काफी सारा टाइम एनर्जी चला जाता है। ऑफ कोर्स आई शुड मेंशन हियर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। जैसे कि उन्होंने यूनिफाइड बायलॉज बनाया, उसका अभी बहुत बेनिफिट ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है। ओके, उसमें भी वो काफी सारा इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, थोड़ा ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें कम हो, ऑटोमेटिक प्रोसेस बने। मुझे लगता है फ्यूचर में थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे एक साइड में मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूँ, उसी साइड में एक दूसरा रेगुलेशन आ जाता है। जैसे 10 साल पहले एनवायरमेंट किसी को पता नहीं था, आज कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो, 8 महीने कम से कम उसके 8-10 महीने एनवायरमेंट में चले जाते हैं। एनवायरमेंट में चला जाता। जब हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बायलॉज की बात करें, एक साइड में बायलॉज थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गए, उसी वक्त वहां पे और 10 अप्रूवल्स आ गए। जैसे आपको रेलवे का एनओसी लेना है, एयरपोर्ट का एनओसी लेना है, उसके बाद में अभी रेरा का एक्ट आ गया, उसके अभी रोज अमेंडमेंट आ रहे हैं, उसका कोई ना कोई रूलिंग आ रहा है रोज, उसका कंप्लायंस है। तो ये सारा कंप्लायंस और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है डे बाय डे, जो हम एक्चुअली सोच रहे थे कि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता कि आने वाले 5-10 साल में वो उतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा और ये उतना आसान धंधा रहेगा। नहीं, और दूसरा ये होता है सर कि पहले के कंपैरिजन में, पहले ऐसा था कि मुझे मालूम 25 साल पहले की अगर मैं पीछे बात करता हूँ, तो तभी जितने प्रोजेक्ट डिले हुए ना, उसमें क्लाइंट ने जिसने बुक किया उसको भी फायदा हो गया और डेवलपर को भी फायदा हो गया। वो पहले जैसे हम देखते थे, फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, मैं उसके साथ हमेशा कंपेयर करता हूँ, जितनी अनऑर्गेनाइज वो थी वही रियल एस्टेट सेम है। मतलब आप देख लो, वहां पे एक फिल्म बनती थी, वो डेवलपर का घर, अपना प्रोड्यूसर का घर बिक जाता था, किधर से पैसा लेके आता था, वो पिक्चर चालू करता था, एक हीरो लेता था, बाद में हीरोइन, वो 5-6 साल तक 7 साल तक चलती थी। सेम रियल एस्टेट में था, बट रियल एस्टेट में अच्छा ये था कि वो जैसे डिले होता था वो प्राइस बढ़ते जाते जाता बिकॉज इन्वेंट्री कम थी, तो जो बनाते थे वो बिक जाता था, लोगों के पास चॉइस नहीं थी, बिकॉज कस्टमर को हाउसिंग लोन ही नहीं मिलता था, तो घर कितने लोग लेंगे। तो वो जो सिचुएशन थी, वो हम आज बोल रहे हैं प्रोफेशनलिज्म आ गया, हाउसिंग लोन मिल रही, सारी चीज ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत है रियल एस्टेट में। इट इज नॉट दैट इजी बिजनेस टू डू, यू नो, एनीवेयर इन इंडिया, क्योंकि आप सुबह में उठते हैं ना, कुछ नया कायदा आ जाता है। अभी रिसेंटली बॉम्बे में वेस्टर्न सबब में, हम अभी हमारा 48 से 9 सेशन वेस्टर्न सबब के ऊपर है, आप जरूर सुनना, उसमें हम हमारे बीडीए के प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को बुला रहे हैं। अचानक आप अभी रिडेवलपमेंट सोसाइटी को लिए, आप डेवलपर है, आपने सोसाइटी को पैसा दे दिया, कॉर्पस दे दिया, सोसाइटी खाली करके निकल गया, आपने बिल्डिंग तोड़ दिया, और अचानक नया रूल आया कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से अभी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब वो बंदा परमिशन लेने को जाता है तो उसको 23 माले की जगह पे 14 माले का परमिशन देना है। मतलब वो प्रॉफिट तो छोड़ो, वो सोसाइटी का भी उसको बना के देने में भी उसको लॉस हो। अभी वो बंदा 4 महीने से खड़ा है, बिल्डर, उसको अप्रूवल के पैसे भर दिए पूरे उसने, अगर उसने बैंक से लोन लिया है तो वो तो घर बेचेंगे उसका। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाजू में ऑलरेडी 60 माले की बिल्डिंग में अप्रूवल मिला है, तो कोई लॉजिक भी नहीं लगता है हमको कभी कभी। नहीं सर, होता है, ये काफी रिस्की है। जैसे आप बोल रहे हैं, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे रत्नेश और नितिन जी विटनेस है, पिछले हफ्ते नई ब्लू लाइन रेड लाइन आई है। लोगों ने काफी सारी डेवलपमेंट आगे करके रखी है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, लैंड डेवलपमेंट शुरू है, ऑलरेडी लेआउट हो चुका है, प्लॉटिंग हो चुका है। अभी उनको पता चला है कि आज यहाँ पे वो बिल्डिंग ही नहीं बना सकते,
बन अभी सके। क्या होगा आप सोचो सर। और मैं तो एक स्टेप आगे जाता हूँ सर, एज ए मैं 35 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ, फिर भी आज मैं मेरी ऑफिस में आजकल लोग ऑनलाइन जाके टैगिंग करके लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक लेके बुकिंग करा रहे हैं, ब्रोकर लोग। मुझे डर लगता है कि मुझे अगर किसी को कोई कस्टमर को 30 35 40 माले की बिल्डिंग में फ्लैट बुक करना है, वो बंदा अपनी लाइफ का पूरा पैसा लगा रहा है लोन लेके, और बीच में कोई ऐसा रूल आ गया समझो जिसमें डेवलपर का भी कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूँ डेवलपर का गलती इसमें, लेकिन अगर वो बंदा 3 4 5 50 लाख का लोन लेके वो प्रोजेक्ट कल को अटक जाता है, उसका लाइफ क्या होगा उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि उसकी तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो रेंट पे रहता होगा, इंस्टॉलमेंट भी भरता होगा बैंक का, बैंक को कुछ लेना देना नहीं आपका प्रोजेक्ट अटक गया कि क्या हो गया, उसका तो इंटरेस्ट चालू रहेगा। सही है सर, सही है। तो आई थिंक व्हेन ये जो बात आती है ना, वहां पे सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम में आती है, चाहे क्रेडाई हो या नरेको हो, एनआईआर इंडिया हो। आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट व्हेन वी वांट टू सी कि अपना इंडियन ग्रोथ इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गवर्नमेंट को बनाना है, तो रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू रीच देयर, तो वो करने के लिए फिर हमको ये सारी चीज भी ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए कि भाई आज आपने एक रूल लाया तो अगले 5 साल तक नया कोई रूल बीच में नहीं आएगा। So those kind of things, I think, as an organization, we should try and impress upon with the government. सर कभी कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को एक अपील की जाए कि आप कुछ मत करो, बस बराबर है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम हमारा रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। ग्रेट। नितिन भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा आपको कि अब डेवलपमेंट जब भी मैंने देखा है कि छोटे छोटे सिटी के अंदर डेवलपमेंट होती है तो फिर बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, और वहाँ अचानक जो अगले जनरेशन के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि चारों ओर डेवलपमेंट हो रही है, आवाजें आ रही है, तो जो हम पहले शांति से रहते थे सिटी में वो शांति छीन गए हमसे। तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि कोल्हापुर की अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना फर्क पड़ा है, और आगे 10 साल के अंदर हाउ डू यू सी द लाइफ ऑफ कोल्हापुर? Because it is not only about growth and economy, we should also see that human life के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट बोला जाए तो वैसे फिर भी अगर हम लोग मेट्रो जब भी हम घूमते रहते हैं, पुणे जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी आर लिविंग वेरी पीसफुली इवन नाउ, एंड आई डोंट थिंक इन कमिंग 10 years वी विल लिव बेटर लाइफ देन एनी अदर मेट्रो और समथिंग, क्योंकि शहर भी है, यहाँ पे सब मिलता भी है, क्वालिटी लाइफ इंप्रूव भी है और सुकून भी है, तो ये सब थोड़ा सा बैलेंस है यहाँ पे। वैसे अगर न्यूसेंस जो आप बोल रहे थे कि जैसे सब काम चलते रहते हैं तो जो भी तकलीफें होती है ये होते हैं, ये तो अब मुझे नहीं लगता कि अपने देश में कोई ऐसा शहर रहेगा कि जहाँ पे नहीं है। वी आर ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, सो ये थोड़ा होता रहेगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में वी कैन डेफिनेटली सी सम इम्प्रूवमेंट इन आवर ओवरऑल लाइफ। काफी चीजें नई नई आ रही है, हर रोज नया रास्ता, एक कभी फाइबर ऑप्टिक के लिए खोदा जाता है, कभी अभी पाइप गैस आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये हो गया, अभी रास्ता नया नया बना है तो पाइप गैस के लिए वापस शुरू हो गया है खोदना, तो दिस विल गो ऑन, तो लेकिन वी आर सीइंग अ ब्राइट फ्यूचर। रत्नेश भाई, कभी कभी हमको लगता है कि हम लाइफ है ना, हम फ्यूचर के भरोसे, हमारे अंदर हिंदुस्तानियों के पास बहुत पेशेंस है और हम वी आर वेरी होपफुल कि बस अभी कल हो जाएगा। हमारा नवी मुंबई में एयरपोर्ट कितने साल से मैं सुन रहा हूँ, 20 साल से तकरीबन, और वो एयरपोर्ट के चक्कर में पूरा नवी मुंबई बिक गया, लेकिन एयरपोर्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो कभी कभी हम फ्यूचर की होप्स के ऊपर बहुत जाते हैं, और खास करके रियल एस्टेट के जो और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद गवर्नमेंट। कभी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारे चीज जो नहीं होने वो डिले हो जाते हैं, सो वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट। सो आपके हिसाब से अभी जब हम कोल्हापुर की बात करते हैं तो अगर कोई बंदा बाहर है, अच्छा आपके वहाँ एनआरआई क्लाइंट का कितना, कौन से लोग कौन सी सिटी से बाहर की, कोल्हापुर छोड़ के बाहर की सिटी से लोगों ने आके इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनआरआई बहुत कम है, लेकिन पुणे, मुंबई, आजू बाजू महाराष्ट्र के बहुत से एरिया से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जो दूसरा चीज मैंने आपको बताया था उस तरीके से कि सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, जो यहाँ पे 4-5 साल रह के गए हैं, वो लोग किसी भी बाद में स्टेट में जाए या कंट्री में कहाँ पे भी उनका ट्रांसफर हो जाए, उनके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे हुए।
गिरीश भाई आपसे ये जानना चाहूंगा, बिकॉज आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, तो आपकी कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा बाहर की दूसरी सिटी जैसे पुणे, नासिक या मुंबई, तो कौन सी सिटी से ज्यादा फुटफॉल आया जिन्होंने बाइंग की कि भी चलो कुछ फैमिली वहां पे रहती है इसलिए हम पूना से हाईएस्ट है सर। पूना का सिचुएशन ऐसा है कि मुझे लगता है लगभग पूरे महाराष्ट्र की सिटी का और हाँ। पूना का ये रिलेशन है। तो ऐसा हुआ होगा कि जो लोग कोल्हापुर से कोल्हापुर से माइग्रेट हो गए migrate पूना, होके या उनको लगा कि फिर एजुकेशन के लिए गया है, वहां पे जॉब कर रहा है, तो ही विल प्रोबेबली ट्राई टू कम बैक टू हिज रूट्स, या फिर आजू बाजू के सिटी में कहीं पे फैमिली रहती है, दे वांट कि वो उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, वो टाइप के काफी क्लाइंट है। उसी टाइप से सर मिडल ईस्ट में मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। यूएई, दुबई से पर्टिकुलरली काफी सारे इंक्वायरीज है, बुकिंग्स है, और यूएस में काफी सारे लोग जो यहाँ, ऑफकोर्स जो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो सब यहाँ से जो माइग्रेट होके जो सिटी में गए वहां से कोल्हापुर के है, कोल्हापुर के इन एंड अराउंड कोल्हापुर के है। और दूसरा एक कोल्हापुर एक रिटायरमेंट टाउन जो पहले पुणे हुआ करता था, वो अभी कोल्हापुर शायद रिप्लेस कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, जिनका शायद कोल्हापुर का कुछ कनेक्शन है भी नहीं, वो भी अभी सोच रहे कि मैं रिटायरमेंट में कोल्हापुर में आके एक घर ले लूंगा, यहाँ पे कंफर्टेबल में लाइफ बिता सकता हूँ। वो एक दूसरा एक क्लास मुझे अपील कर रहा है आजकल। एक्सलेंट। अब नितिन आप बताइए कि जो लॉकडाउन जब भी आया, तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों को एक चीज का रियलाइजेशन आया कि घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है। हम सबने एक चीज को फील किया है। कभी कभी हमको लगता है हमको ही हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम जो प्रोफेशन में उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी हमको कोविड ने बोलते हैं ना आपको पहचान कराई उस चीज की। बराबर। तो उसमें खास करके मेट्रो सिटी में ये चैलेंजेस बहुत आए कि लोग अपने बिल्डिंग के नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे। तो वॉक करना, हेल्थ का ध्यान रखना, रूम नहीं है, आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते, छोटा घर है। तो उस दौरान जैसे पहले लॉकडाउन खुला ना, लोनावाला, करजत, हमारा उधर वापी, वलसाड, ये जो 1-1.5-2 किलोमीटर की रेडियस में मुंबई के नजदीक में अलीबाग, वहां पे प्लॉटिंग और बंगलो स्कीम जो पहले बन के पड़ी थी, कोई ले नहीं रहा था, ये सारी पहले लॉकडाउन में निकल गई। और मैक्सिमम इंक्वायरी अभी आज भी है हमारे पास कि गेटेड कम्युनिटी में प्लॉटिंग डेवलपमेंट चाहिए। भले घर 2 रूम बनाए, लेकिन वॉक कर सकते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ तो जाके 15 दिन रह गए वहां पे, वॉक कर सकते, खुली हवा में रह सकते। तो आपके वहां पे भी इसका कुछ प्लॉटिंग डेवलपमेंट का ज्यादा डिमांड निकला है कि, और अगर है तो कैसे प्राइस है वहां पे? प्लॉटिंग डेवलपमेंट का डिमांड है, लेकिन यहाँ पे इतना जैसा बड़े सिटीज की में ऐसा जैसा आपने बताया कि लोनावाला वगैरह, वहाँ पे जैसा प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट्स बना है, ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स है, प्रॉपर गेटेड प्लॉटिंग ये बना हुआ है। इस तरीके से अभी कुछ बन नहीं रहा है, बना नहीं है। तो जो भी रॉ प्लॉटिंग है वो प्लॉटिंग जा रहा है। प्राइसिंग काफी बड़ा है सर। आफ्टर पोस्ट कोविड प्राइसिंग में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आई है। मतलब जहाँ पे 1,000, 1,200, 1,500 पर स्क्वायर फीट चल रहा था, वहां पे 2,000 प्लस हो गया है। जहाँ पे 2,000 चल रहा था वहां पे 2,500 प्लस 3,000 तक चला गया है। तो प्राइसिंग इज डेफिनेटली, मतलब जो जो एरियाज में हमने 5-6 साल 7 साल के लिए एक ही प्राइस से हम लोग बेच रहे थे, जैसा लाइक 3,000 3,500 के अराउंड, वहां पे अभी 5,000 के नीचे प्लॉट नहीं मिल रहा है। तो इंक्रीज तो हुआ है प्लॉटिंग में, लेकिन बाहर ऐसा ज्यादा डिमांड आया ऐसा नहीं है। लेकिन घर लोगों को लग रहा है कि सबको कि बड़ा होना चाहिए। पीपल आर मूविंग फ्रॉम 1 BHK टू 2 BHK, 2 BHK टू 3 BHK, 3 BHK वाले फिर डुप्ले ले रहे हैं या फिर पेंट हाउसेस ले रहे हैं। और सबको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाउनशिप का ये आ रहा है, अभी टाउनशिप का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो एटलीस्ट अपने अपने प्रीमाइसिस में तो कम से कम जो भी है कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल टावर बिल्डिंग्स काफी है कोल्हापुर में पहले से बनी हुई। तो सिंगल टावर में अभी रहना इतना ये नहीं लग रहा है। 2 साल घर में रहे ना तो थोड़ा कम्युनिटी चाहिए आजू बाजू में, ये लग रहा है। तो गिरीश भाई, आपका कंपनी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है जो थोड़ा आउटस्कर्ट में हो कोल्हापुर के, और एक 20-25 एकड़ के अंदर कोई ऐसे टाउनशिप जिसमें सारी फैसिलिटी हो, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं? मन में तो है उस प्रकार का करना, लेकिन फिलहाल कुछ प्लान में इमीडिएट तो दिख नहीं रहा। ऑफ कोर्स सिटी के अंदर प्राइम एरिया में मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, तो वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे एक 250-300 फ्लैट्स रहेंगे, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, एक छोटा सा टेनिस कोर्ट वगैरह जैसा एमिनिटीज देके, जैसा नितिन जी ने अभी बताया वैसा गेटेड कम्युनिटी, बट इट विल बी इन प्रीमियम एरिया, प्रीमियम प्राइसिंग एरिया। या
रत्नेश भाई, ये जो अभी आपके हिसाब से आगे चल के कौन से एरिया जो, देखो हर एक सिटी के अंदर है ना, एक आउटस्कर्ट में एक एरिया डिमांड में आता है जहाँ पे फ्यूचर लोगों को दिखता है बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोकेशन के आसपास आ रहा है। तो ऐसे कौन से लोकेशन है जो कोल्हापुर के आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे लोगों को प्लॉट्स चाहिए, समझो अभी प्लॉट्स लेके छोड़ देंगे 5 साल के साथ, जहाँ पे कभी भी कुछ ग्रीन जोन में आते हैं, तो और वहाँ पे एफएसआई का क्या है नॉर्म्स और क्या प्राइसिंग में मिल सकते हैं? सर मैं आपके दो क्वेश्चंस थोड़े मिक्स करके एक जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि Yeah. ये आज के रियल एस्टेट कोल्हापुर के जो ब्रोकर्स काम कर रहे हैं उनको फोकस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। Yes. कि जैसे कोविड का एक सवाल था, नितिन जी ने बहुत अच्छा उसके ऊपर जवाब दिया। तो कोविड, बिफोर कोविड कोल्हापुर का जो पब्लिक है उसमें से बहुत से लोग पूना में जॉब करने के लिए है, पूना या नियर बाय पूना, मुंबई, बहुत से लोग हैं। और कोल्हापुर का हर एक पब्लिक के दिमाग में ऐसे रहता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कि बच्चे आगे चल के पूना में जाएंगे, Yes. तो हम लोग पूना में प्रॉपर्टी लेते हैं। और पूना में कोल्हापुर के लोगों ने प्रॉपर्टी लेने का वॉल्यूम बहुत बढ़ा है। तो कोविड के बाद में ऐसा हुआ कि ये जो वहां पे जॉब करने के लिए जो गए हैं सब लोग, वहां पे रहते हैं, माइग्रेट हुए, वो कोविड में वहां पे नहीं रह पाए और वो सब वापस अपने घर पे आ गए। हाँ. उस दिन से हर एक के मन में विचार चालू हो गया कि नहीं, मैं जब वापस आता हूँ तो मेरे घर, मेरे गांव में मेरा घर बनता है। Yes. तो आज का कोल्हापुर का रियल एस्टेट, ये सब लोग, और वहां पे कैसे रहता है, जॉब, घर एक जगह पे है, जॉब दूसरी जगह पे है, जॉब चेंज हुआ तो वापस वो रेंटली लेके कहाँ पे तो रहना है। तो उससे अच्छा वो इन्वेस्टमेंट अभी वापस हमारा बंदा कोल्हापुर में ही वापस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी थोड़ा सा बाढ़ का एरिया हमारे यहाँ पे थोड़ा जो निगेटिविटी हुआ, उसके वजह से कोल्हापुर का एक्सपांशन, सिटी का एक्सपांशन, जो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक अभी हमारे यहाँ पे लास्ट 4-5 साल से चल रहा है, उसका एक सॉल्यूशन निकल के आया कि इसमें प्राधिकरण बन गया। इस प्राधिकरण में 42 आजू बाजू के गांव है वो इंक्लूड हो गए, और वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो सिटी के हिसाब से होना चालू हो गई। इस प्राधिकरण में जो गांव है उसका वॉल्यूम 5.5 लाख के लोग का एरिया का वॉल्यूम इसमें ऐड हो गया, और थोड़ा सा नियर बाय हाथकणंगले तालुके में भी कुछ गांव इसमें ऐड हो गए हैं। इस 42 गांव में उसका 3 लाख का एरिया इसमें ऐड हो गया। लकीली बहुत अच्छा ये है कि आज के हमारे जो वहाँ के सीईओ है मिस्टर चौहान सर, वो एकदम एक्टिव है, और उन्होंने इतना काम का वहाँ का स्पीड रखा है और जो डेवलपमेंट की है का रिकॉर्ड आज मैं देखता हूँ, तो वहाँ पे सैंक्शन प्लान्स और कंप्लीशंस 2021 और 22 में 450, लगभग 461 उन्होंने परमिशंस और कंप्लीशंस किए हुए। टेंटेटिव लेआउट इस एरिया में आजू बाजू के कोल्हापुर के गांव में चालू है, वो लगभग 224 है। लगभग 685 ये नए प्रोजेक्ट्स, नए लेआउट्स का वॉल्यूम इस कोल्हापुर के नजदीक के 42 गांवों में तैयार हो रहा है। और ये जो कोल्हापुर में आने वाले लोग हैं, ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो आउट ऑफ कोल्हापुर जॉब कर रहे हैं, और उनको अभी लगता है कि अपने गांव में एक जगह होनी बनती है। उसी टाइम पे ये प्राधिकरण की भी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से चालू है, उसको ड्राइव भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो इस प्राधिकरण के एरिया में आज की डेट में बहुत अच्छा स्कोप है वहां पे लेआउट्स के लिए, वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए। कोल्हापुर का जो एक्सपांशन का क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। वहाँ पे प्राइसिंग कैसे रहेंगे? अभी किसी को इन्वेस्ट करना है समझो वहाँ पे प्लॉटिंग अभी डेवलपमेंट में, वहाँ की प्राइसिंग 1000 रुपीज से लेके 2000 रुपए के रेंज में रहेंगी सर, पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इसमें वहाँ पे एफएसआई कितना है? ये सब ग्रीन जोन में रहते हैं प्लॉटिंग या नहीं FSI? सर, प्राधिकरण में एज इट इज सिटी का एफएसआई सब रूल्स एंड रेगुलेशन वही आएंगे। कितना तो गिरीश FSI? जी, एम आई राइट? राइट। सिर्फ टीडीआर छोड़ के बाकी के सब एफएसआई उनको मिल रहा है। जैसे कि बेसिक एफएसआई उनको 1.1 है, 0.5 उनको प्रीमियम पेड एफएसआई मिल रहा है, टीडीआर भी है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे रिजर्वेशन डेवलपमेंट नहीं हुए, इसके आगे चलते वो होता जाएगा और बिल्डअप होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से एट पार विद सिटी 3.5-4 तक एफएसआई वहां पे मिल सकता है। उसका मतलब अगर कोई बंदा अभी ये सुनेगा बाद में भी और कोल्हापुर वाला ये और कोई दूसरे सिटी में जॉब कर रहा है, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आज वो प्लॉट लेके रख देगा। It's a great opportunity.
तो 10 साल के बाद आज जो आपकी कोल्हापुर में जो भी एफएस है उसको 10 साल के बाद वो एफएसआई मिलेगा। सर 10 छोड़ दो, 3-4 साल की बात कर रहा हूं मैं। 3-4 साल में अगर सिटी लिमिट एक्सपांड भी हो जाती है, आज आप एक प्लॉट ले लो प्राधिकरण वाले किसी भी गांव में, आई एम श्योर Yes. आने वाले अगले 3-4 साल में रत्नेश चुकत असेल तर करेक्ट करा मला, नहीं नहीं बरोबर आहे. एक्सटेंड हो जाएगा, Yes. सिटी लिमिट एक्सटेंड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सिटी कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा। अगर प्राधिकरण में भी है तो भी कोई गलत नहीं है, Absolutely. सेम बेनिफिट्स। यस यस यस। तो सबसे पहले तो मुझे आके एक अलग प्लॉट ले लेना पड़ेगा रत्नेश भाई। ट्रेमेंडस एप्रिसिएशन सर, मार्क माय वर्ड्स। ग्रेट सर, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। इतना मतलब बम्बई में बैठ के कोल्हापुर के बारे में इतनी जानकारी मिली, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे वो सबको इससे बहुत फायदा होगा। और हमारा पर्पज ये था कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू हर एक सिटी को पूरे इंडिया के मैप में रखें, ताकि बहुत कम लोगों को मालूम है सर कोल्हापुर के बारे में। हम महाराष्ट्र में है तो मालूम है, लेकिन बाकी जगह पे बहुत कम नॉलेज है। तो ऑल ओवर इंडिया से हमको अगर इंडिया को आगे लेके जाना है तो हर सिटी को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। तो चलते चलते कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि सर आपका वहाँ कोल्हापुर में ब्रोकर और डेवलपर के रिलेशनशिप कैसे है? आपके जैसे क्रेडाई है, उनकी कोल्हापुर रियल एस्टेट की एसोसिएशन है, तो कुछ ज्वाइंट में प्रोग्राम आगे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि हाउ कैन टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस टू द कस्टमर्स लाइफ, यू नो। उसके ऊपर कुछ आपके सुझाव है गिरी जी? आई थिंक रत्नेश शुड टेक दैट। यस रत्नेश भाई, आप बताइए। सर कोल्हापुर क्रीडाई एक बहुत अच्छा, मैंने कोल्हापुर क्रीडाई को मैं 2010 से बहुत नजदीक से देखते आ रहा हूँ। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा टीम वर्क, ना ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, सिटी पे जो भी तकलीफ आती है तो उसमें सबसे पहले काम करने के लिए या हेल्प करने के लिए आगे क्रीडाई रहती है कलेक्टर ऑफिस के साथ में। तो ये क्रीडाई का जो रिलेशन, इंटरनल बॉन्डिंग मैंने देखा है, उसके साथ में इन सब लोगों ने सपोर्ट किया है। इसके वजह से ही हम लोग आज एक अच्छे ब्रोकर्स एसोसिएशन या डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं, उनका इन टोटल क्रीडाई का हर वक्त सपोर्ट रहा है। जब कारवा का इंस्टॉलेशन हुआ तब सयाजी होटल में कोल्हापुर में ये फंक्शन हुआ था, उस टाइम पे कोल्हापुर के वेल नोन 90 बिल्डर्स की अवेलेबिलिटी उस फंक्शन के लिए थी। क्या बात यही, और वो शुरुआत ही इतने सपोर्ट के साथ में हुई थी, और ये रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से है। कोल्हापुर में बहुत कम ऐसा रेशो है कि जिसमें इलीगल बहुत कम चीजें होती है। ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट्स है हमारे यहाँ पे। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जो करते हैं वो 1-2 प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। कोल्हापुर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू अदर सिटी सर, ये अभिमान के साथ में बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये चीज जो बनाते हैं वो दिल से बनाते हैं। और कारवा का और क्रीडाई कोल्हापुर का रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी लास्ट मंथ में अपना जो ब्लड डोनेशन कैंप था, उस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए कोल्हापुर क्रीडाई की एडमिनिस्ट्रेशन टीम पूरी हमारे यहाँ पे वो फंक्शन के लिए अटेंड करने के लिए आए थे। एक्सेलेंट, वेरी गुड। नितिन, आपको मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब इंडिविजुअल भी कोई काम करते हैं कस्टमर के लिए या कोई डेवलपर के पास, आपके हिसाब से कोल्हापुर में कितने डेवलपर्स रहेंगे रफली, अप्रोक्सीमेटली? क्रीडाई की बात करेंगे तो क्रीडाई आई थिंक अराउंड 125 के अराउंड रजिस्टर्ड डेवलपर्स है। इज इट राइट गिरीश जी? 160 160 160 इज अ गुड नंबर टू। और मैं हमेशा गिरीश भाई ये बात बताता हूँ सब हमारे ब्रोकर्स को कि उनको पूछता हूँ कि हु इज योर कस्टमर, बिकॉज ज्यादा करके लोग जो कस्टमर फ्लैट लेने को आता है ना, उनको अपना कस्टमर समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है यू आर माय कस्टमर, डेवलपर, ईच एंड एवरी डेवलपर इज माय कस्टमर। सर हमें भी वही लगता है, आप ही हो जो हमें रॉ मटेरियल देते हो, हमारा फिनिश प्रोडक्ट भी ले रहे हो। फॉर मी यू आर द बिगर कस्टमर देन कस्टमर, बिकॉज आप जो चीज बनाते हो वो हम बेचते हैं, तो आप हमारे पहले कस्टमर। रेंटल में तो हर महीने कुछ ना कुछ देते रहते हो। करेक्ट। सेकेंडली, सो व्हेन यू आर चेकिंग, बिकॉज आपको 160 के साथ में तो आप काम नहीं करेंगे, करेक्ट? तो व्हाट डू यू थिंक कि हमको अच्छा बिजनेस करने के लिए, हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, आपको डेवलपर के प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे 160 में से ये 15 या ये 20 ही बेचूंगा मैं, तो उसमें वो कौन सी चीज आप ड्यू डिलिजेंस में चेक करते हो डेवलपर्स की तरफ से?
उनके सामने पूछता हूं मैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई विल आस्क हिम सेम क्वेश्चन फॉर यू आल्सो. इट इज फॉर मी. यस, आपके लिए नितिन. ओके. तो ड्यू डिलिजेंस मतलब अभी वी विल व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेवलपर कि जो डेवलपर टाइमली डिलीवरी देता है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा होता ही है सबका. तो और जो प्रॉमिस किया हुआ डिलीवर करता है, वो मतलब जो भी बिफोर हैंड पहले बोला गया है, जो जो चीजें बताई गई है वो सब दे रहा है. देर आर फ्यू डेवलपर्स हु आल्सो गिव एट पार, उससे ज्यादा देते हैं, नहीं है ऐसा नहीं है. तो ये सब चीजें सब देखते हैं पेपर वर्क में. ऐसा जैसे रत्नेश ने बोला कि ऐसे यहाँ पे इलीगल ज्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी वो देखा जाता है. दैट्स नॉट अ केस कि होता नहीं है. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसे रत्नेश जी ने ये किया कि उसके ऊपर भी एम्फोसाइज होता है कि कौन से बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है. तो ये चीजें तीन हम लोग देखते हैं. एक ये आपका प्लेटफॉर्म जैसे आपने बोला कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस लाइक फ्रॉम अ डेवलपर. यस. तो एक नया चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो शायद यहाँ पे कुछ लोग करते रहेंगे, लेकिन मुझे हमारे तक आया नहीं है कि जैसा वी सी इन ग्रेड सिटीज में जैसा होता है, जैसा पूना में है या मुंबई में है, कि जो ब्रांड्स काम करते हैं तो वो जब यहाँ पे आते हैं कोल्हापुर में और हमको जब वो अपना प्रोजेक्ट पिच करते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ से उनको लीड्स भेजने शुरू कर देते हैं तो दे टैग देयर आवर लीड्स टू आवर नेम एट देयर एंड. तो उनका सॉफ्टवेयर रहता है, उनका सीआरएम ईआरपी सिस्टम सब बना हुआ है. करेक्ट. तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है. सी कोलैब हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा डेवलपर के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है, देयर इज ट्रस्ट डेफिनेटली. बट कोल्हापुर इज अ वेरी स्मॉल सिटी, और बीइंग स्मॉल सिटी यहाँ पे सबकी सबके साथ में पहचान है. ट्रू. एवरीवन नोज एवरीवन. तो थोड़ा सा वो एक ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट इश्यू हो जाता है. तो इसलिए अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज करे जैसे सीआरएम है, ईआरपी बने हुए हैं, वो लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली यूज करते रहेंगे. तो ऐसे ही लीड मैनेजमेंट के लिए अगर यूज करें और हमारे जो ये है लीड्स है वो हमारे नाम पे अगर टैग कर दे तो क्लैश का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. वो कस्टमर हो या डेवलपर हो या हमारे बीच में कुछ क्लैश का इशू नहीं आएगा. वरना दो ब्रोकर एक ही कस्टमर को लेके जा रहे हैं या फिर उनका सेल्स पर्सन भी वही कस्टमर टैकल कर रहा है. कभी कभी कस्टमर भी होशियार रहता है, वो खुद जाता है फिर भाई को भी बेचता है. यस. तो दिस थिंग्स हैपन. सो ये थोड़ा अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने थोड़ा काम करना चाहिए. एक्सेलेंट. वेरी वेल सेड. नितिन जी, ये जो बात है ना, ये पिछले 35 साल से मैं फेस कर रहा हूँ. या और आगे भी, बिकॉज कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा वो चीज आगे भी चलती रहने वाली है. उसको हमको एमिकली साथ में मिलके अगर हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट से काम करते हैं तो वहां पे उसका सॉल्यूशन निकलता है. लेकिन छोटे सेंटर में मैंने ये चीज देखी है, तो उसको इवॉल्व होने को थोड़ा टाइम लगेगा. बिकॉज जैसा आपने कहा, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. मैंने जब अहमदाबाद में 2008 में ऑफिस शुरू किया गिरीश भाई, तो जो भी डेवलपर के पास मेरा बंदा जाता था वो बोलता था हम ब्रोकरेज देते ही नहीं है. बोलते तुम कस्टमर से लेना, हमको तो सब जानते हैं. बोलते हैं हमारा फ्लैट ही कितना है, हमको फ्लैट ही नहीं बेचना. तो मेरा बंदा आके बोलते सर इधर अपन बिजनेस कैसे करेंगे. मैं बोला जिस दिन सिटी का ग्रोथ होगा ना, क्योंकि क्या है, हर जिस आदमी को, मैं बोला आप उसको पकड़ना है जिस आदमी को अपना खुद का टाइम का वैल्यू है. यू डोंट गो टू द डेवलपर जो जिसके पास फ्री टाइम है और बहुत कम काम करता है. क्योंकि जैसा आपका एक्सपांशन होना तो आपको ये सारी चीज समझ में आएगी. पहले रियल एस्टेट में सेल्स बहुत लास्ट में आता था गिरीश जी. व्हेन आई स्टार्टेड, सेल्स की कोई बात ही नहीं था. कभी कोई डेवलपर साइट के ऊपर बोर्ड नहीं लगाता था अपना. 15 फ्लैट बनाता था, 15 फ्लैट सामने से लोग जाके 150 लोग खरीदार होते थे. सही है सर. वो माहौल था. अभी जो परिस्थिति हो रही है वो ऐसी मुझे लग रहा है कि आज मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ. आप लोगों ने सोनी टीवी, आपके घर में टीवी लिया होगा, सैमसंग लिया, सोनी लिया, पिक्चर आपने कहाँ से खरीदा हो? ऑथराइज्ड स्टोर जो कोई आपने भी कंपनी से नहीं खरीदा है. नहीं. आपको आप ऑटोमोबाइल गाड़ी भी खरीद रहे हो, मर्सिडीज, आप उसके शोरूम में जाओगे, जो डीलर है उसके पास जाओगे. तो वो सारी इंडस्ट्री है ना ऑर्गेनाइजेशन. राइट. हमारी इंडस्ट्री, हम उस तरफ जा रहे हैं अभी. और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगले 5 साल के बाद नो बिग डेवलपर, बिकॉज हमारी पूरी इंडस्ट्री है ना, वो 10 या 15 डेवलपर, 80% ऑफ द वर्क ऑफ रियल एस्टेट विल बी डन बाय 10 डेवलपर्स इन इंडिया. और उनको चाहिए कि दे डोंट वांट टू सेल दैट प्रॉपर्टी. उनका फोकस है हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है.
So they need channel partner. नितिन Exactly, जो sir. बात कर रहा है I अभी was CRM, the same opinion. नितिन जो बात कर रहा है CRM की, चाहे आप गोदरेज को ले लो, L&T ले लो, टाटा ले लो, they have 50,000 brokers in their system. हो सकता है कुछ लोग छोटे सेंटर में से रेरा रजिस्टर ना हो. आप सोचो कि उनके प्रोजेक्ट मल्टीपल सिटी में, वो उनकी टीम जो होती है वो खाली एक बंदे को वो 50 ब्रोकर का नाम देते हैं. उसको डायरेक्ट सेल करना ही नहीं है सर. वो जो बंदा है उसका काम है डेली 50 ब्रोकर को एक मैसेज जाएगा, उसका जो ग्रुप बना है उनके साथ 1 to 1 फोन करेगा, उनको जो भी मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, उनके कोलेट्रल है, उसके डिजाइनिंग है, वो सारा वो बेचता है. तो बोलता है मैं आपको बेचता हूँ, आप कंपनी का नाम डाल के मार्केटिंग करें. तो वी हैव ऑलरेडी टेकन दो स्टेप, और इसलिए आगे चल के वही ब्रोकर काम कर सकेंगे जो प्रोफेशनल है, जिनको इस सिस्टम के साथ आना आता है, जिनको ट्रांसपेरेंसी से काम करना है. यू विल बी मोर देन हैप्पी टू पे ब्रोकरेज, बिकॉज आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको टाइम ही नहीं देना है. आप आपका काम प्लॉट नया ढूंढने में करिए. आपकी टाइम की वैल्यू कितनी है? तो आई थिंक वी आर ऑन दैट पाथ, और वो अभी धीरे धीरे छोटे सेंटर में आने को वक्त लगेगा, बिकॉज जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, तभी आपको ब्रोकर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी. आप 2 बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको सब जानते हैं, आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं, आपने बैंक से लोन नहीं लिया है, आपको ब्रोकर की जरूरत नहीं है. लेकिन जिसको रोज कैश फ्लो चाहिए, दे नीड ब्रोकर. जिसको 500 फ्लैट बेचना है महीने में, जिसको 1000 फ्लैट चाहिए बेचना है महीने में, उसको ब्रोकर लगेगा ही लगेगा. So I think we are towards that journey. गिरीश भाई, आपको क्या लगता है एक प्रोफेशनल ब्रोकर में आप क्या देखना चाहते हैं? आप कोल्हापुर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाट आर दोस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू वुड लव टू सी इन योर ब्रोकर? ओके, आपने जो पॉइंट छेड़ा है उसको लेके और एक प्रोफेशनल ब्रोकर, ये दोनों का मैं कंबाइन करके आपको जवाब दे देता हूँ. जैसा कि आप बोल रहे हैं, मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ रियल एस्टेट डेवलपर का, तो मेरे काफी सारे एक प्रोजेक्ट बनाने में काफी सारे डिपार्टमेंट्स लग रहे हैं, काफी सारे जगह मेरी एनर्जी जा रही है. जैसे कि लैंड प्रोक्योरमेंट है, उसके क्लियरेंसेस है, डिफरेंट अप्रूवल्स है, कंस्ट्रक्शन करना है. बहुत इंपॉर्टेंट इज कंस्ट्रक्शन. यस, जैसा मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा रेट में बेचूं, वैसे मैं चाहूंगा कि मेरा परचेस भी कॉम्पिटिटिव हो, चार पैसा बच जाए मेरा. और उसके बाद सेल्स है, सेल्स के बाद थोड़ा पोस्ट सेल सपोर्ट भी है. अगर इसमें से कुछ चीज मेरी ऑफलोड हो रही है, मुझे सेल्स के लिए कुछ कॉस्ट आ रही है, मेरा स्टाफ लगा हुआ है, मेरे मार्केटिंग चल रही है उसके ऊपर, अगर वो कॉस्ट थोड़ा शेयर हो जाता है, तो मुझे तो कोई उसमें ऐसा गलत नहीं लग रहा कि मैं कोई चैनल पार्टनर लेके उसके साथ चला जाऊं आगे. मेरे दिमाग में से एक सेल्स का जो टेंशन है वो हट जाएगा और आउटसोर्स हो जाएगा. इन शॉर्ट, इट इज आउटसोर्सिंग. आई एम आउटसोर्सिंग द सेल्स टीम. देयर आर पीपल इन पुणे, देयर आर पीपल इन मुंबई जो टोटली प्रोजेक्ट उन्होंने आउटसोर्स करके रखे हैं, नहीं कर रहे. तो उस सिचुएशन के लिए पहुंचने के लिए आप जैसा बोल रहे हैं, एग्जैक्टली उस वॉल्यूम का प्रोजेक्ट चाहिए. मुझे लगता है कि जैसे जैसे सिटी डेवलप हो रही है, हम सब डेवलप हो रहे हैं, ब्रोकर जैसे डेवलप हो रहे हैं, वो जरूर एक ना एक दिन वो आएगा, बहुत ही जल्द आएगा. 4-5 साल में हम देख सकेंगे कि कोल्हापुर में भी हजार फ्लैट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं. उनको बेचने के लिए सोल सेलिंग एजेंट, चैनल पार्टनर्स थे, और वही लोग बेच रहे हो. अगर वो बेचने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है तो ही वो बना पाएगा ना पीछे. अगर वो बेचने के लिए खुद भागता रहेगा तो बनाएगा कब? तो वो प्रोफेशनल डेवलपर्स के साथ एक प्रोफेशनल ब्रोकर भी चाहिए. आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप एक प्रोफेशनल ब्रोकर में क्या देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं? तो सबसे पहली बात, उसका नॉलेज बेस में चेक करता हूँ हर बार. मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर जिस लैंग्वेज में समझ रहा है, उसको जो चाहिए वो डिलीवर करने के लिए उसके पास उतना केपेबल ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, उसका उतना खुद का IQ होना चाहिए. और लैंड के बारे में तो सर 100% चाहिए. जब मैं लैंड परचेस कर रहा हूँ या फिर कोई किसी को लैंड बेचने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए रेवेन्यू मैटर्स जो कुछ भी है वो सारा होना चाहिए. खाली एक 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड लिया, उसका जेरॉक्स निकाला और जाके सर्कुलेट कर लिया, वैसे वो होता नहीं सर. लैंड बिकता नहीं. दूसरा चाहिए उसका क्रेडिबिलिटी. अगर वो कुछ बोल रहा है, बता रहा है,
तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखता हूं मैं कि इसके पीछे इसने क्या किया है, क्या डिलीवर किया है, क्रेडिबिलिटी क्या है, इसका मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहता है, बड़ी बड़ी अमाउंट्स रहती है। ये 2-3 चीजें अगर वो कंपेयर करके अगर कंफर्टेबल है तो आई डोंट थिंक उसके अलावा और कुछ देखना जरूरी है। इवन रेरा अप्रूवल भी कुछ हमारे लिए मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स इट इज बाय लॉ, वो लेना चाहिए। नहीं नहीं, I truly endorse what you say. You know, I was just checking ये जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया रेरा, तो जो भी ब्रोकरेज कर रहा था इंडिविजुअल लोग ज्यादा है उसमें, क्योंकि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का 10,000 रुपीज है, प्राइवेट लिमिटेड का और पार्टनरशिप फर्म का 1 लाख रुपीज है महाराष्ट्र में। तो आई हैव गॉन थ्रू रेरा, तो जिसमें ब्रोकर्स है, बहुत कम लोगों को ये मालूम है गिरीश भाई की रेरा में आपके पास सबसे बड़ा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। आप लोग मार्केट नहीं कर रहे अपने आप को। मैं बोलता हूँ आपका विजिटिंग कार्ड से लेके आपके ऑफिस के बोर्ड से लेके वेरेवर यू आर प्रिंटिंग योर कंपनी नेम, यू शुड पुट बिग लेटर रेरा रजिस्टर्ड, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रहा है वो। रेरा के ऑनलाइन जो स्पेस दिया है उसने कि आप आपका प्रोफाइल क्रिएट करो वहां पे, तो प्रोफाइल क्रिएट, हार्डली 1% ब्रोकर, हार्डली 1% ब्रोकर जिन्होंने वहां पे रेरा में जाके प्रोफाइल क्रिएट किया। वहां पे स्पेस बहुत दी, आप अपने बारे में पूरा डालो, आप कितने साल से बिजनेस में हो, कितने ट्रांजेक्शन किए, आपका अचीवमेंट क्या है आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ताकि आज समझो कोई एनआरआई क्लाइंट रेरा में जा रहा है कोल्हापुर में, तो वो देखेगा 84 रजिस्ट्रेशन है, तो एक एक के ऊपर क्लिक करे, खाली नाम ही लिखा है, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, और जिसने अपना प्रोफाइल डाला होगा वो एनआरआई क्लाइंट सबसे पहले उसको टच करे। तो ये रेरा में है, खाली रेरा में होना जरूरी नहीं है, आप उसको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। To add on your point, sir, मैंने Yes, भी फीडबैक लिया था। मेरे यहाँ पे जो कस्टमर्स बाय करते हैं, बुकिंग करते हैं, उनको मेरा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, क्या मिला, हम फीडबैक लेते रहते हैं। वेरी गुड। तो उसमें मुझे आई वाज सरप्राइज्ड टू नो हाँ, कि ऑलमोस्ट 80% पीपल हैव ऑलरेडी विजिटेड रेरा वेबसाइट। यस, बरोबर. ऑलमोस्ट 50% लोग जो मेरे पास इंक्वायरी आई है वो रेरा का वेबसाइट देख के आए। उन्होंने गूगल करके मेरा नाम गूगल नहीं किया, उन्होंने फ्लैट्स इन कोल्हापुर गूगल नहीं किया, उन्होंने प्रोजेक्ट्स इन कोल्हापुर गूगल नहीं किया, वो सीधा रेरा की वेबसाइट पे गए और वहां से उन्होंने निकाला है क्या 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 है। जब मैं पोजीशन का डेट बोलता हूँ या मैं कुछ बोलता हूँ तो सामने से आदमी बोलता है कि रेरा की वेबसाइट पे ये लिखा है, इट मींस दैट ही हैज विजिटेड दैट। सर मैं आपको बोलता हूँ, अभी जो कंज्यूमर है ना, वो मैक्सिमम रेरा वेबसाइट के ऊपर, आपने जो बोला ना गूगल पे बाद में जाता है, रेरा में वो इसलिए जाता है कि रेरा में वो डेवलपर और ब्रोकर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट तो फाइल नहीं है, बिकॉज रेरा में वो डेटा भी मिल रहा है आपको। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यू नो माई नेफ्यू has done BE Civil and he did masters in construction management from Florida, और उसने मियामी में 2 साल काम किया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, एंड देन ही केम बैक टू इंडिया। 3 साल से मेरी कंपनी में हेल्प कर रहा है मुझे। ये जो ऑनलाइन ब्रोकर की पाठशाला शुरू भी उसकी वजह से हुआ लॉकडाउन में। ये यंग जनरेशन है, दे थिंक यू नो, हम तो बोले आप बाद में क्यों, अभी कर लो ऑनलाइन में, इट विल हैपन। तो मुझे उसको जब मैं सब डेवलपर्स एनआर इंडिया में सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था, खास करके डेवलपर्स के पास, तो सब लोग उसको पूछ रहे थे, तो वहां से इंडिया में क्यों आया, एंड व्हाट आर यू डूइंग इन रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस, बीइंग अ टेक्निकल मास्टर्स किया है तुमने यूएस में। तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ सर कि अगर आप ऑटोमोबाइल में जाएंगे मारुति के शोरूम में, तो मारुति के शोरूम में जो बंदा सेल्स में होगा ना, मार्केटिंग सेल्स में, वो एवरेज ग्रेजुएट हो, एंड ही विल टॉक अबाउट कि ये मारुति के जो 3-4 मॉडल है उसमें प्राइसिंग का बात करेगा, कितना डिस्काउंट मिलता है, एंड ही विल टॉक अबाउट द एवरेज, तो उसमें इतना एवरेज मिलता है, दैट इज हिज सेल्स पिच। बट इफ यू गो टू आप BMW या मर्सिडीज या यू नो ऑडी के शोरूम में जाएंगे, तो वहां पे जो मार्केटिंग सेल्स में बंदा होगा ना, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर मिलेगा, एंड ही विल नॉट टॉक अबाउट प्राइस, ही विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट। वो उसकी प्रोडक्ट के फीचर क्या है, कितने सेकंड में 100 किलोमीटर पार करती है, सिक्योरिटी क्या है, कौन सी इनोवेशन है वहां पे वो गाड़ी के अंदर, उसके ऊपर बात करें। ही विल नेवर टॉक अबाउट प्राइस। सो अगर आपको रेसिडेंशियल में या कमर्शियल में, अगर आपको रिटेल में, कुछ भी लग्जरी सेगमेंट में कुछ काम करना है, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज अगर नहीं होगा तो यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। तो मैंने मेरे नेफ्यू को बोला, यू टेक केयर ऑफ यू नो लग्जरी सेगमेंट,
क्योंकि अगर आपको किसी को 15 करोड़ का फ्लैट बेचना है सर, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते ये लेआउट है, ये हॉल है, ये किचन है और इसमें स्विमिंग पूल दिया है और ये प्राइस है। तो यू नीड अ डिफरेंट थिंग्स। उसका आर्किटेक्ट कौन है, उसका लैंडस्केप कौन आर्किटेक्ट करता है, अगर वहां पे गोल्फ है तो वो कौन किसने डिजाइन किया, यू टॉक अबाउट दैट। अब उसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एंड देयर यू नीड टेक्नोलॉजी। आपका टेक्निकल जो बिट, आप माइवान है तो क्या है, कितने ब्रोकर को मालूम है, तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या नई नई चीजें यूज कर रहे हो। आज ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं हम, अब कितने ब्रोकर जाके वो पिच करेंगे क्लाइंट को कि भाई ये ग्रीन बिल्डिंग आईजीबीसी का प्लेटिनम रेटिंग है, उसकी वजह से इसका खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 120-125 रुपए का फर्क पड़ता है। दिस थिंग्स आर चेंजिंग नाउ इन आवर इंडस्ट्री एंड इट इज बोथ वे। When developer also, when they are making a luxury segment product, तो वहां पे उनको भी वो स्किल लगती है, वो टेक्नोलॉजी लगती है। ऐसा नहीं कि आपने खाली 5 बेडरूम का फ्लैट का प्लानिंग कर दिया इसलिए वो लग्जरी हो गई, बट ये सारी चीजें उसके साथ कनेक्ट होती है। तो एंड स्पेशली आपकी जो कोल्हापुर सिटी है, वहां पे नई नई चीजों का इनोवेशन का बहुत अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर, आई थिंक another 3-4 years down the line we'll see a great growth in Kolhapur city. So thank you very much, all of you, Girish bhai, Nitin and Ratnesh, for having agreed to come on Broker Ki Pathshala and share your valuable thoughts and insight about Kolhapur city. On behalf of all the brokers who are watching and the team of Broker Ki Pathshala, we would like to present appreciation certificate to all of you. Ruksar, can we have a certificate, please? So, ब्रोकर की पाठशाला, it's an initiative by Square Feet Foundation. गिरीश भाई, हमने ट्रस्ट बनाया स्क्वायर फीट फाउंडेशन का. All the activities we are launching a physical basic course for real estate broker who want to make a career in real estate. किसी ने HSC किया है और एवरेज ग्रेजुएट है, उसको जॉब नहीं मिलता है आज. और खास करके मैं भी छोटे सेंटर से आया हूँ मुंबई में, तो हम लोग वर्नाक्युलर में जो पढ़े लैंग्वेज में, उनको इंग्लिश का बहुत डर लगता है. तो मैं एक कोर्स डिजाइन किया है कि ऐसे लोग आके जिनको मैं पढ़ा सकूं, कि अगर उनको ब्रोकर बनना है तो वो कोर्स हम फिजिकल नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं. उसका रजिस्ट्रेशन भी हमने चालू किया है. सो ये फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत है, इट इज नॉट फॉर द बिजनेस, बट मुझे लगता है मुझे ये इंडस्ट्री ने 35 साल में जो दिया है, मैं कुछ वापस कर सकता हूँ नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि हम ऊपर जाने के बाद में भी कोई तो बचे दुनिया में जो 25 साल के बाद याद करें कि विनोद ठक्कर कोई था जिसने कुछ करके गया इंडस्ट्री के लिए. सो ब्रोकर की पाठशाला एंड इनिशिएटिव ऑफ Square Feet Foundation, certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Girish Raibage, Director Raisons Construction Kolhapur, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 10th June 2022, season 5. Thank you very much, Girish bhai. Please accept this. Thank you very much, sir, for having me here. मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और interaction, it was a great learning session for me as well. मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला इसमें से. Thank you very much and wishing you all the best. So nice of you, sir. Please stay back. Ruksar, can we have another certificate? Certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Nitin Kesarkar, partner, Amcon Realtors Kolhapur, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 10th June 2022, season 5. Nitin ji, thank you very much for your time and sharing the insight. Please accept this, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, Ruksar. Next. Broker Ki Pathshala, an initiative by Square Feet Foundation, a certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Ratnesh J. Sirodkar, Honor Aditya Property Consultant Kolhapur, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 10 June 2022, season 5. Ratnesh bhai, thank you very much. एक फोन पे आपने सारा ऑर्गेनाइज किया. I really appreciate your contribution. Thank you, Vinod bhai. Ruksar, can we have a slide for the Broker Ki Pathshala's institution courses? Yes, sir. You can put that, and then we will also announce the next season, next session, next Friday.
And next Friday we are going to, where are we going? We are going to Siliguri. Oh, लेकिन अभी great. जाके आया सिलीगुड़ी. अभी जाके आया. पहले हम 3 जून को रखने वाले थे सिलीगुड़ी, लेकिन जीपी मीटिंग था इसलिए हमने डेट पोस्टपोन किया. So next Friday we are going to Siliguri. The cityscape, the pulse of Siliguri, 17 June, 4 p.m. onwards. Look forward to all of you to know more about this wonderful city. We are going to have our leaders from Siliguri who will come and share their knowledge about that city and the real estate market. Ruksar, can we have the post of courses? Is it possible or not? So just a minute. Okay, by the time you put it, I'll request all the guests to say their last word before going. Your feeling about today's session? Sir, it was a great session and I congratulate you for that. Thank you. ऐसे ही बनाते रहिए, करते रहिए. जरूरत है लोगों को आपके जैसे एफर्ट्स लेने वाले लोगों की जो एक थैंकलेस जॉब कर रहे हैं. I should appreciate once again. Thank Yes, you. sir. And all So the this best. is the post, sir. Broker Ki Pathshala, we are launching. The courses will start from 1st of July, first week of July. We have said ABC of real estate broking business. सर हमारा ट्रेनिंग सेंटर मेरे ऑफिस में बना रहा हूँ मैं 25 लोगों के लिए, उसका इंटीरियर चालू है. होता है कि अभी जैसे मैंने कहा 10 लाख ब्रोकर है और 56,000 रजिस्टर्ड है. बाकी के ब्रोकर भी बिजनेस करते हैं. आज सबसे ज्यादा चैलेंजेस हमको स्किल मैन पावर की है. रत्नेश भाई एंड नितिन भाई, यू विल एग्री कि आज आप कोई प्रेशर को आपके ऑफिस में रखते हो तो उसको एबीसीडी कुछ मालूम नहीं रियल एस्टेट की, तो आपको आपका टाइम देना पड़ता है. जब भी आपके पास टाइम है आप बैठते हो, उसको दिखाते हो कि भाई ये साइट पे जाके आओ, ये डिटेल लेके आओ, वो जाके आया अधूरा डिटेल लेके आता है, आप वापिस भेजते हो. तो आप जब जब अपना वक्त निकालोगे तभी आप उसको ट्रेन कर पा रहे हो. उसको बेसिक रियल एस्टेट समझने को 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, और जब तक वो समझता नहीं है तब तक वो कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है. और आप जितना टाइम डाल रहे हो, आपके टाइम की वैल्यू क्या है. तो हमने एक फर्स्ट जो बेसिक कोर्स है वो 30 आवर्स का डिजाइन किया है, जिसमें हम हर वीक में 2 सेशन रखने वाले हैं 3-3 घंटे के, ताकि आप 5 वीक में आपके वहां जो भी बंदा है वो काम भी कर सकता है और कोर्स भी कर सकता है. एंड विद इन 5 वीक जब वो बाहर जाएगा तो उसको रियल एस्टेट के बारे में कोई बेसिक कुछ भी पूछेंगे, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, चाहे वो रेरा हो, चाहे कारपेट हो, सुपर बिल्डअप हो, रिटेल हो, लॉजिस्टिक हो, he or she will be able to answer that question in a very, very right way. So this is what is our first approach. उसके बाद हम एडवांस कोर्स पे जाएंगे जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन बेस्ड होगा, उसमें क्या क्या स्किल चाहिए. एंड थर्ड कोर्स वी आर गोइंग टू डिजाइन इज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, कि आज हिंदुस्तान में ऐसे ब्रोकर है जो टैलेंटेड है, उनके पास 1 या 2 मेंबर का टीम है, 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं. उनको जो नेक्स्ट लीप में जाना है 2 से 20 लोग करने हैं, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू ट्रेन देम इन थर्ड वॉल्यूम, यू नो. सो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान. यस रत्नेश भाई, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू. सर बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो आप अभी एजुकेशन का काम कर रहे हो ये सच में एक जरूरी चीज है, क्योंकि आज हम, आपने जैसे बोला कि हमें इसमें बढ़ना है लेकिन एक जगह पे जाके स्टक हो जाते हैं, क्योंकि अपना मेजर प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय रखते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और वो जैसे ट्रेन हो जाता है एक दिन वो भाग जाता है. तो ये ट्रेनिंग का टाइम और ये सब चीजें, एक प्रोफेशनल ट्रेंड बंदा आ जाएगा और ये काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतना उसका बिजनेस और ये पोटेंशियल सब उसके यूज हो जाएंगे. आपके इस ब्रोकर की पाठशाला और आगे के जो एजुकेशन सेगमेंट जो आप चालू कर रहे हैं उसके लिए आपको मन से शुभकामनाएं. थैंक यू रत्नेश भाई. यस नितिन भाई. सर ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का. इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव एन इंटरेक्शन विथ यू. काफी दिनों से फॉलो करता था आपकी ब्रोकर की पाठशाला, कभी लगा नहीं था कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. आई वाज जस्ट आप कोल्हापुर के हमें ले लिया इसमें. थैंक्स फॉर दैट. यस. एंड ये जो अपना इनिशिएटिव है, इट्स डेफिनेटली वेरी गुड इनिशिएटिव. We ourselves feel like to, I myself feel like to enroll for that entrepreneurship module of yours.
Yes. डेफिनेटली, क्योंकि जैसे रत्नेश सर ने बोला कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे टीम के लिए भी, हमारे खुद के लिए भी। तो बेस्ट विशेस फॉर यू दैट। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही जल्द आपका एसोसिएशन का एक प्रोग्राम रखिए कोल्हापुर में। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कम। आपका सिटी रह गया है तो Definitely, इट sir. वुड बी माय प्लेजर टू कम एंड शेयर। वो जो 2-3 घंटे का मेरा सेशन है सर, गेटवे टू बिकम सक्सेसफुल ब्रोकर, उसमें सारा निचोड़ है। तो आपके वहाँ मेंबरशिप ग्रोथ भी हो जाएगा। आप एक दिन का कॉन्फ्रेंस जैसा भी रख सकते हो, सो दैट कोल्हापुर को थोड़ा एक पुश मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। और क्रेडाई है आपके साथ में, तो बहुत ही जल्द कर सकते हैं आप इस चीज को। क्रीडाई के सेल्स टीम और हमारा ऐसा मिला के कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली विल प्लान फॉर दैट सर, डेफिनेटली। उस लाइन पे मैं भी सोचता हूँ, कुछ डेफिनेटली करेंगे आगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड वी आर सीइंग ऑफ, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे फॉर सिटी ऑफ सिलीगुड़ी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Bye. Thank you.